we go! हाँ जी एंड वेलकम बैक. मेरे साथ एज यूजुअल बैराम काजी तो है ही, लेकिन एक और स्पेशल गेस्ट, पहली वीडियो जो उनकी ड्राफ्ट नहीं है. Exactly. Former GM of Multan Sultans and grassroots cricket as well. Director of grassroots cricket, former GM Multan Sultans, former also an international commentator. Yes. You know, and works at PTV. हिजाब जाहिद. थैंक यू. बड़ा लंबा इंट्रोडक्शन था, इतना लंबे की जरूरत नहीं थी वैसे, बट लेट्स गो. और जो आज बट शुक्र है इट्स अ नॉन ड्राफ्ट शो. फाइनली द प्रेशर इज ऑफ. नो वोटिंग, नो पिकिंग. भाई मेरे लिए ड्राफ्ट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ एंजाइटी. हाँ, आई मीन PTSD शायद होता. PTSD होता होगा. लेकिन वो एक ड्राफ्ट जीता है, कोई 15 कर चुका है, उसको प्रेशर नहीं होता. तो Exactly. वो हीट है ना. But anyway, आज का जो premise है इस podcast का, we're basically previewing the mother of all clashes, or what's supposed to be the mother of all clashes, India versus Pakistan. Even if in recent memory clashes थोड़े one-sided रहे हैं on either side, if you think about it, right? It is still the biggest ticket game in all of cricket, and right up there in all of sport as well. You know, बहुत ज़्यादा revenue generate होता है. ऐसा ही है. हम इसलिए चाह रहे हैं आप views भी उतने ही दो हमें. अच्छा, जो मांग के लिए वो क्या व्यूज है मेरा. घुसने से पहले ना जरा एनालिसिस में मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ. Are you guys excited for this game? क्योंकि मैं वो वाली एक्साइटमेंट नहीं है. यार थोड़ा सा लूकवार्म है. थोड़ी सी एक्साइटमेंट है भी, थोड़ा सा. इट्स अ बिग क्लैश ऑफ कोर्स, वी वांट टू सी, बट जो हालात, जो जज्बात इस वक्त पाकिस्तान टीम के हो चुके हैं, वी लॉस्ट बोथ ऑफ आवर ओपनर्स. Yes. जो एक ओपनर स्क्वाड में था वो भी नहीं है. हाँ, अब आ गया खैर. And we've not just lost any openers, we've lost bloody good damn openers. Yeah, and openers जो आपकी single handedly game लेके जा सकते थे. And a horse has replaced them, right? Yes. But खैर, I love that horsey. Anyway, जहाँ तक मेरी feelings की बात है, I'm excited for any and every cricket game that Pakistan play. वो बात नहीं है. But if you talk to me about my confidence in Pakistan actually beating India, it's at an all-time low. I can't remember the last time Pakistan was ready to square up against India, और इतना मैं low confidence रखता हूँ Pakistan cricket team. 2015 Has to be 2015. Probably, The Suhail Khan, Ehsan Adil, Rahat Ali team. एक इरफान था बस, तुम ही बता रहे थे. Yasir Shah was the leg spinner. वहाब रियाज भी था. Wahab bhi tha, yes, true. That was probably the last time I felt this low on confidence in Pakistan. And you know, it's a must-win game for them, yaar. It is. हाँ. It's an imbalance. ठीक है, I do admit कि उनको भी थोड़ा सा disadvantage है because Bumrah is not there. Bumrah has been the main man. लेकिन हमें, I don't think historically हमें बुमराह ने इतना तंग किया है जितना हमें बाकी उनके bowlers ने किया, which were the spinners. हाँ, which were the, मैं historically बात करी अगर ODIs की हम देखें, उनके स्पिनर्स हमें तंग करते हैं और हार्दिक पांड्या हमें बहुत तंग करता है. कभी हार्दिक पांड्या से मुलाकात होगी, आई पर्सनली लेट हिम नो कि आई नो you're a great human being, but भाई तुम हमें बहुत तंग करते हो. I mean, I would think twice about that statement as well. I mean, he's been in the news for a lot of wrong reasons as well, Hardik Pandya, but cricket with exception. ठीक है. But yes, Pakistan basically are you know, kind of in a bit of a tricky situation क्योंकि odds are they'll lose this game. ठीक है. Conventional wisdom ये suggest करती है, and then if they lose this game, they're virtually out of the tournament, which is why I mean, नजर नहीं आ रहा मुझे कि ये फाइट बैक कर सकते हैं. हिस्टोरिकली अगर देखा जाए, पाकिस्तान इसी सिचुएशन में बाउंस बैक करती है. अच्छा. Do you think this team has it in them? अच्छा, I'll come back to Hijab as well on this because मुझे तुम दोनों की राय चाहिए. To me, of course, historically, Pakistan has always been a backs to the wall या backs against the wall sort of team. Corner Tigers है. जब कोई और ऑप्शन नहीं रह जाती ना, सिर्फ जीतना होता है, तो पाकिस्तान generally tends to bring the best out of itself. But this narrative is now a bit old-fashioned. It's been a while since Pakistan have done that. Last जो आप semis और final खेले हो, you got lucky. Netherlands did you a massive favor. Let's not forget that. Or yeah, if you really ask me when to back this team, as opposed to me saying I'll back them when they've got their backs against the wall and they're cornered Tigers, and this might hurt some people, but I feel like I'll only back them, at least this Pakistan unit, when they're playing a bilateral series when the opposition team just doesn't take it seriously enough. Yeah? That's one way of putting it. वैसे हाँ. बैक तो मैं फिर भी करूंगा. हाँ. तो वो एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तानी तो है ना. पाकिस्तानियत जाग जाती है. या पाकिस्तानी है वो तो है ना हम, लेकिन कॉन्फिडेंस जीरो है मुझे. और जिस तरह की क्रिकेट इन्होंने खेली है ना, एटलीस्ट न्यूजीलैंड अगेंस्ट न्यूजीलैंड, एटलीस्ट उससे तो मुझे कोई उम्मीद भी नहीं जाग रही कि ये बाउंस बैक कर सकेंगे. और it was probably one of the worst ODI chases I've ever watched. It was a disservice to the format.
ठीक है, एंड द स्पोर्ट यार अगर आप इफ यू आस्क्ड मी दिस क्वेश्चन अबाउट a month and a half ago या जब साइम फिट था मेरे जज्बात बहुत डिफरेंट थे साइम भी फिट था like even without Fakhar you guys we defeated South Africa, we defeated Australia and not in our home conditions, in foreign conditions when nobody was actually expecting us to do that. Not an easy feat to do, they were full strength teams. ऐसा नहीं था कि वो कोई बी जैसा हमारे लोगों को अक्सर कहते हैं वो बी टीम है, certain extent था, मगर पाकिस्तानी गलती नहीं है. नहीं you play what's in front of you and you're playing in foreign conditions. I felt like everything was working out. I feel like your spin department was good. I feel like your top order, middle order, everything was one or the other thing was clicking in every game. Captaincy was great. It was amazing. Was great. I mean, you won 8 out of 9 games, right? Exactly. No, sorry, 7 out of 9 games. Zimbabwe के खिलाफ एक मैच हारे थे, but going back to back away from home in those ODI series was commendable. बड़ा confidence दिया उन 3 महीनों ने हमें और उन सीरीज ने हमें, लेकिन फिर छंद से जो टूटे कोई सपना वो वाला ये क्यों नहीं गा? हम ऑफ एयर कह रहे थे कि आज तो हिजाब से गाना गिलवाना है. That's how we roll. I will sing if Pakistan wins against India. ठीक है. तो लेकिन ये कि I feel like अभी जो हमारे हालात चल रहे हैं, the pace attack is not up to where we were expecting it to be. Spin department ने को खास हमें ऐसी वजह दी नहीं है कि हम उनके ऊपर ज्यादा confidence show कर सकें. And then again we're going with a lot of part timers as well. वही हम कह रहे थे ना, फखर एक ऐसा मैच विनर था यार. मुझे वो जो रील है ना, वो रील जो है ना, वो that is not the content we signed up for. I swear to God, first of all, just to confirm to everybody जिसको ना पता हो, Fakhar Zaman is officially or has officially been ruled out of the Champions Trophy. His replacement is Imam ul Haq. We'll discuss him in a bit. But what Hijab mentioned, I don't know if you guys have seen that video या वो reel जो भी है, but it should come with a trigger warning. Absolutely. अच्छा नहीं मुझे पता हो वैसे वीडियो तो ऑब्वियसली बड़ा इमोशनल कर दिया था, काफी इमोशनलाइज कर दिया था. काफी ज्यादा लोग जो है ना ऑनलाइन वो ये कह रहे हैं कि ये कभी वीडियो बाहर नहीं आनी चाहिए थी क्योंकि ड्रेसिंग रूम की सारी clips Yeah, look, I mean, you could have. Pakistan have always has shown dressing room stuff before as well. और आपका opinion आज क्या मसला? एक रियलिटी आपको बड़ा जोर से हिट करती है कि आपको तो एज अ व्यूअर, एज अ स्पेक्टेटर, एज अ स्टेक होल्डर ये चीज हिट करती है दैट अ प्लेयर इज आउट. बट जितना आई कैन नॉट इवन इमेजिन, आई एम नॉट एन एथलीट, आई कैन नॉट इमेजिन, लेकिन जितना ज्यादा वो उनको हिट करती है, बिल्कुल. The intensity is just off the charts. Being around athletes, I can see the emotions when you might not always see it on TV and such, but जिस तरह उनको हिट करती है ना ये चीज, दैट एंड जो एक चीज मुझे थोड़ा सा तंग भी कर रही है और खाई भी जा रही है was that this was probably his last ICC tournament. I mean, let's hope not. Let's hope not, but fingers the crossed. chances are that this might. I would love for Fakhar to feature in the 2027 ODI World Cup, but who's to say how he comes back from this? Exactly. है वो warrior आदमी, फौजी है वो. लेकिन यही मसला है ना, लास्ट पॉडकास्ट में भी मैंने बात की थी, एट दिस स्टेज ऑफ हिज करियर इतनी इंजरी की जो एक्सटेंट है उसके बाद वो खेला भी है उस इंजरी में. You aggravated the injury. He spent time out in the middle और उधर और उसे इंजरी वो हो रही अगर थी, तो I don't know how मेरे से he will पूछो ना, recover. that was a horrific decision. Yeah, I atrocious. felt like you could have probably saved him for the rest of the tournament if you. नहीं, were या I don't उसको think एंड he- में I don't एंड में think- भेज देते अगर कोई सीन बन रहा होता. अगर कोई सीन बन रहा होता ना, that was very much situation dependent. Yeah. मैं बताऊं, I think he was done शुरू में. Yeah, you could tell from his face honestly, He was जितना done. वो dejected था बेचारा. But then again, in that scenario, he shouldn't have come out. Absolutely, he shouldn't have. have. And if anything, you've aggravated his injury, and it just breaks my heart that this is the guy who is the hero of the previous Champions Trophy. और 2 बॉलों बाद Literally, it took 2 balls in this title defense. You know, at home where he got out injured, or very similar to Saim. ठीक है, उतनी extent नहीं है, मगर वही freak injury. शाहीन भी इसी तरह इंजरी हुआ था यार. या यही fielding नसीम करते थे. भी शोल्डर उसका निकला था इस जगह में, याद है? और पता है Fielding वो, करते हुए. I mean, like Hijab mentioned कि players को बहुत ज़्यादा hit चीज़ करती है. Even as someone who is an avid follower of cricket, forget the fact that I'm from Pakistan. Just looking at that imagery, those scenes, they absolutely shatter your heart, man. दिल टूट्स, टोटे. नहीं मैं इस वक्त गाना नहीं गा रहा. Sorry. मैं पता सीरियस नहीं हुआ. कौन से सेलिब्रेटरी मूड में या है। ये इस पे गाना नहीं देखो, बनता. क्रिकेट है, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है, क्यों नहीं खुश हो? नहीं मगर यार बाकी हमारी टीम अच्छी नहीं कर रही, वो एक अलग बात है. खुश एक है ना, खुश होना बनता है। you're literally gutted हाँ. for someone, and especially a guy like Fakhar who we know is a team man, हाँ ना. and he's a selfless player, Yeah. and he always like dons that gold star with pride. बहुत ही dignified career है. जिगरा है उसका, हाँ. जो कि आप शायद कम लोगों के बारे में कह सकते हैं कि और- he has a proper
फाइटिंग लाइक यार जब वो सामने खड़ा होता है ना यू कैन फील इट इवन इफ इट्स नॉट प्लेइंग अगर आपके सामने बैठ के वो टेबल पे खाना भी खा रहा हो ना आप उनको देख रहे हो देख रहे हो लाला कितने फाइटर है यार और फखर बेचारे तो मतलब यू नो ही इज सच अ डाउन टू अर्थ गाय एंड यू ऑलवेज लव फखर ही इज आल्सो वन ऑफ दोस गाइज जो ट्वीट्स खुद करता है ये भी he has a wicked sense of humor हाँ he does he's a very funny guy and like look वही जिस तरह बात कर रहे थे हम कि he is someone who has you know throughout his career represented Pakistan with dignity और पूरी जान मारी है and that sort of player when you see that player break down into tears it does things to you like वाकई दिल डूब गया था मेरा my heart sank बिल्कुल एक तो परफॉर्मेंस तो उनकी है ही है he's such a great presence in the dressing room as well I bet such a great presence he's always positive always laughing always making everybody laugh you know somebody like that in the dressing room is irreplaceable this would be a huge loss for Pakistan especially considering कि अगला मैच कोई छोटा मैच भी नहीं है अगला मैच बहुत बड़ा मैच है probably the biggest one that there is और जिसमें उसकी बहुत जरूरत थी जिसमें उसकी बहुत जरूरत थी virtually a knockout game for Pakistan मामा मेंटालिटी हमारे लिए सारी गेम्स ही नॉकआउट होती हैं फखर जमान की है मामा मेंटालिटी है and versus India you really needed him especially in the power play especially given the surface yaar and the conditions you really needed Fakhar never goes into his shell he never goes into yaar his shell big match player match winner someone who has performed versus India in a big game before so it is an incomprehensible loss to Pakistan and पता है तुमने शुरू में पूछा था ना कि what my opinion is on whether the video should have gone out or not यार it shows you the human side of a cricketer I don't have issues with that I don't have any issues with any sports person showing his human side बिल्कुल emotion इसी तरह रिलेटेबिलिटी बनती है फैंस और स्पोर्ट्स पर्सन आई फील ये तो चीजें और बाहर आनी और आपने ना सोसाइटी में नोशन बनाया हुआ है कि स्ट्रॉन्ग मेन डोंट क्राई आई फील लाइक स्ट्रॉन्ग मेन वो होते हैं हु लेट देयर इमोशन आउट दैट वे वो मैस्कुलिनिटी पे कोई सवाल वो खुद नहीं उठाते ना टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी यही होता है इस पॉडकास्ट में ये लाइव पॉडकास्ट बन जाता है किधर निकल गया अभी तो शुरू हुए हैं अभी तो कुछ किया ही नहीं हमने बट ऑनेस्टली ऑन वन नोट आई डू you know if Fakhar Lala is listening to this and at any point we do wish कि आप जल्दी वापस आए and you get recovered I think you are irreplaceable yes I do feel like कि आपकी legacy is very very strong beyond the Champions Trophy like even in other formats as well I feel like that you are somebody जो के would be the man to look up to for the next generation कि अगर हमने modern cricket खेलनी है ना who do we look up to in the last 10 years in Pakistan अगर हम बैटिंग की बात करें you're on top it's Fakhar Zaman man वो stat याद है तुम्हें 40 plus average and 90 plus strike rate openers 5 ही हैं हिस्ट्री में Fakhar Zaman है David Warner Quinton de Kock Shane Watson and Rohit Sharma yes those are the ones so that's elite company and like Ajab mentioned yaar he is that sort of player who you should idolize ठीक है and यार अब क्या ही कर सकते हैं अब कर ये सकते हैं कि हम उनकी रिप्लेसमेंट पे बात कर सकते हैं इमाम उल हक so are you guys content with that यार मैंने और क्या ही करते हैं personally guys I would have gone with Abdullah Shafiq I know 3 ducks आए हैं personally मेरी भी फर्स्ट चॉइस अब्दुल्ला शफीक थी हम यही बात करते आ रहे हैं लेकिन फिर then again मुझे था कि either one of those three शान मसूद अब्दुल्ला शफीक या इमाम में से कोई भी पहले होना चाहिए था स्क्वाड में हाँ मतलब पहले से होना चाहिए उनमें से एक को and I would have taken either but I'll tell you what my rationale is Abdullah had done well in the ODI World Cup so that was something that he could have built on और अभी 3 डक्स तो लेथम के भी आए थे ठीक है 3 डक्स और एक उससे पिछली इनिंग्स में मतलब 4 इनिंग्स में 1 रन था उसका बिल्कुल सो उन लोगों ने बैक किया व्हिच इज गुड ऑन देम हम तो वैसे कहते चैपमैन से रिप्लेस कर दो बट दे डिडंट डू दैट एंड दैट वर्कड वेल फॉर न्यूजीलैंड बट अब्दुल्ला वर्कड वेल व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट एकदम से यू हैव जस्ट lost all faith in Abdullah हर स्क्वाड से वो बाहर है so I would have kept him I like the way he paces his innings and I like his range देखो फेलियर्स पहले भी आए अब्दुल्ला के ऐसा नहीं है कि he's technically flawless or anything we do realize as somebody who watches cricket very regularly that yes there are some flaws bad pad का जो gap है बहुत massive the way that he angles his bat is also something ऊपर से आता है it's also something that's a little bit of a worry but then again those are things that could be fixed those are not the things that cannot be fixed और आप एक बंदे को जो है ना वो दूध में मक्खी की तरह जो है ना निकाल के बाहर जो है वो फेंक दें और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है he's young you could have fixed that you invest in youngsters that's the point youngster but यार दूसरी तरफ इमाम से मुझे इतना ज्यादा मसला नहीं है मगर he's not a like for like I'll go on record से मुझे इमाम से कोई मसला नहीं है I mean sure I like थोड़ा सा इशू है
लेकिन अभी सेंस उसी की बन रही है। यार देखो, इमाम के जो नेगेटिव में चीजें जाती है ना, वो एक तो श्योर ही इज आल्सो अ लेफ्ट हैंडेड बैट, Yeah. बट इज नॉट लाइक फॉर लाइक बिकॉज ही कैन प्ले एट फखर जमान स्पेस। लेकिन उसकी स्ट्राइक रेट अगर Improved है। डोमेस्टिक क्रिकेट में देखें, हाँ। जिससे हम ऑब्वियसली बेंचमार्क बनाया हुआ है हमने, उसमें तो जो बेहतर कि क्या था। थोड़ा थका हुआ ही बेंचमार्क है, बट ही डिड स्कोर 158 आई थिंक फॉर हाँ, पीटीवी। देखो, he's an Well- injury replacement. That makes you think that he wasn't the first choice. Obviously. ठीक है, that you know that. One out of squad. Even I'm pretty sure Imam knows that he's a replacement and Yeah. everything. That I'm pretty sure कि उसके ऊपर भी थोड़ा pressure होगा. So hopefully, I hope that we might see a little bit of a different version of Imam. आई डोंट थिंक ज्यादा प्रेशर होना चाहिए वैसे इमाम पे, क्योंकि वो रिप्लेसमेंट है, उसे पता है मैं पहले भी नहीं था स्क्वाड में, But he's coming back ये to the national अपॉर्चुनिटी है, team. मैंने मार दिया तो मैं हाँ। आ जाऊंगा स्क्वाड में। You But look at he's it from coming that back angle. to the national team. This is his chance to stick. It would also set up an awkward encounter with the management and Aqib Javed in particular. आई डोंट थिंक सो यार, रिप्लेसमेंट प्लेयर पहले Imam पहला is थोड़ी आ रहा है। Imam is someone who also doesn't hold back. He lets his feelings be known. लीक टू द मीडिया। ये तुम ज्यादा ज्यादती कर रहे हो मेरे हॉर्सी के साथ। नहीं आई लव हॉर्स। हाँ, ये सब देखो, मुझे उसका सिर्फ एक इशू जो मैंने बोला था ना, टूर्नामेंट क्रिकेट, टूर्नामेंट या बायलैटरल्स में इमाम हैज बीन फ्लॉलेस, बट व्हेन इट वो कम्स तो टू हमारा वैसी मसला है भाई। हाँ, एक मगर- दो प्लेयर्स को छोड़ के ऐसे हमारे कौन से प्लेयर्स हैं जो बहुत रेगुलरली एक डेकेड से आईसीसी But टूर्नामेंट look at डेकेड Gulf. से नहीं, एक हाँ। टूर्नामेंट में तो करे ना, अभी तक उसने कुछ किया यार नहीं। गल्फ देखो ना, someone who was averaging over 15 ODI cricket, then averages what 30 odd in tournament cricket. जब भी कोई ICC वर्ल्ड कप आया है 50 ओवर वाला, इमाम is shat the bed. कितने टूर्नामेंट खेले वैसे? या दो तो खेला ना वर्ल्ड कप, दोनों में बुरा था, और बस। तकरीबन हर गेम भी खेला था उनके अंदर, बड़ी देर बाद ड्रॉप हुआ था ये, फखर क्योंकि फखर पहले नहीं था, याद है, Yeah, फखर yeah. गॉट इंजर्ड या एंड दैट्स व्हाई अब्दुल्ला केम इन। हाँ, और फिर उसके बाद फखर को वापस नहीं ला रहे हाँ, थे। और फिर उस वाले वर्ल्ड कप में आई रिमेंबर फखर को इंडिया कैसे वाले drop कर देते हैं? इंडिया वाले वर्ल्ड कप में इवन व्हेन ही वुड गेट स्टार्ट्स ही वुडंट कन्वर्ट देम, बट वन गुड थिंग अबाउट इमाम इज के एक तो फॉर्म लगी हुई है, ठीक है, दूसरा एक्सपीरियंस है। that's another thing. Yeah. Okay, he's been doing really well. Yes. For the domestic team, he's done really well for the Shaheens as well. For the people who are not aware of Yeah, that, yeah, वो काफी bulk में अभी score करता हुआ आ रहा है in the same conditions that बिल्कुल। our team is playing. और Although 90 although Dubai would be a bit, bit challenging, yes. but But yeah. I think शायद इमाम can work out. Yeah, Dubai. he could. I hope he can. देखो 98 शायद किया था अभी एक शाहीन सी गेम में। यार South आप Africa एक के सेकंड, against- आपके पास सबसे बड़ी एग्जांपल इस वक्त जो है वो शुभमन गिल की है. His innings अभी ये बांग्लादेश के खिलाफ wasn't a very fiery start or anything. शुभमन का इतना ज्यादा होता भी नहीं है, to be very honest. Rohit Sharma is the one who takes the charge. Yeah. But then again, it paid off. Yeah. Very well. हाँ, it was a नहीं, brilliant. It was- I think he was quick in the power play and then he slowed down. He slowed down. Big time. या देखो played according to the situation. Yes. और Exactly. बैट अगर- सिचुएशन अगर- ऐसी थी कि आपको बस एंड तक खड़े रहना मैं था। बताऊं, अगर He had to यही tackle spin. 321 वाला टारगेट होता ना, तो फिर मैं कह रहा हूँ बिल्कुल, फिर मैं भी कहता कि ये slow खेल रहा है। इस टारगेट के लिए तो परफेक्ट है। He Boys, aced that boys, chase. boys, दुबई में आपको ये टारगेट ये हाँ, टारगेट है। हाँ। He Yeah. aced that chase. दुबई इज नॉट 300 No, प्लस. no, no, not at all. और फिर इमाम ने लिटरली अभी क्या एक दो दिन पहले 158 मारा है पीटीवी के लिए इन द कल- प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी आई थिंक, Yeah. सो दैट आल्सो ऑगर्स वेल फॉर हिम। बट लुक, पता है सवाल कहां पे आ जाता है, यू आर गोना हैव टू पेयर हिम अप विद एन एक्सप्लोसिव ओपनर, एंड प्लीज बाबर को हटा दो यार, वन डाउन ले आओ उसे। अच्छा, अभी तुम चलो, लाइनअप्स अगर- पे आ गए हो। नहीं, अगर- इस चीज पे तो भी बात कर सकते हैं, सिर्फ ओपनर्स पे। आई फील लाइक यू आउट ऑफ ऑप्शंस। अब आपने किया है ना सिलेक्ट उस्मान खान को, खिलाओ। तो खिला दो उसे। और एक कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि तैयब ताहिर हैज अ रियली फैंटास्टिक रिकॉर्ड इन व्हाट 11 लिस्ट देखो, ए he गेम्स, averages around 49-50. बट इन As- 11 As an opener. as an opener. in 11 games, Hijab. Yeah. So that's not a massive sample size. You want to capitalize But on the then power on the play, other hand, you're going with a guy who doesn't have a sample size. and who hasn't ever featured in ODI cricket. Exactly. But सीन ये कि वो पहले का select हुआ हुआ था, and plus अगर आपने उसको open नहीं कराना तो फिर कहाँ खिलाना है उसको फिर नहीं खिलाना। और आपने अगर पावर प्ले यूटिलाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट होगा इस मैच में, राइट? बिकॉज एज यू सेड दैट सर्फेस इज सच दैट इट स्लोज डाउन, Yeah. और आपके लिए रन स्कोरिंग मुश्किल हो जाती है एज द इनिंग्स प्रोग्रेसेस। Yeah, Akshay Patel said in his post-match thing that it was easier to bat Yeah, bat. शुरू में. Yeah. It got really difficult to बिल्कुल। bat in the middle, but then it got easier again at the end. अब फिर से 22 रन्स तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता पहले 10 ओवर्स में। वो तो लिटरली ये लग रहा था कि दे ट्राइंग टू बैट आउट द डे, और ये डे 2 पे आकर चेस करेंगे, या तो इनके पास 2 इनिंग्स हैं 321 चेस करने One के thing लिए। I would say, those tweets were hilarious जो कह रहे थे कि लंच के बाद अच्छा खेल. Yeah, I mean that was all the मेरा भी rage. ट्वीट हिलेरियस था, डेफ मैंगो ज्यादा बंदे ब्लॉक करते, उससे भी ज्यादा ब्लॉक कर दिया। No, I mean Pakistan will have to capitalize on the power play. We saw how Rohit did for हाँ। India, और बांग्लादेश ने नहीं किया वो नहीं बिल्कुल किया। भी। And 22 for 2 तो खैर है ही unacceptable। किसी भी surface पे। Yeah, I suppose so. मुश्किल सरफेस पे भी 22 रन तो ज्यादा ही होने चाहिए। यार टेस्ट में भी हिम्मत unacceptable करनी है। हाँ, आजकल तो टेस्ट क्रिकेट में से ज्यादा
होते हैं यार. नहीं बनाते था. Yeah, and you can't be letting go of that particular phase because it's going to be very important. The UAE surface is a very tricky one. Very अच्छा, tricky one. देखो वैसे Good कितने thing लोग though, good thing though. एक हाँ. मैच हो चुका है वहाँ पे. Yeah. You saw कि how the pitch behaved in the daytime. You saw how it behaved At night. later at the night. No dew. I don't exactly no dew. I don't think कि अगर आप टॉस हार जाते हो तो you would be at a big disadvantage. Yeah, this is our 2021 World बिल्कुल. Cup. Exactly. वो 2021 Yes. वाला नहीं है, टॉस जीतो मैच जीतो, हाँ, टॉस हाँ, जीतो मैच जीतो. नहीं वो वाली नहीं scene इतनी है. टॉस डिपेंडेंट गेम नहीं होगी. Albeit I still feel that Pakistan should not chase. हाँ. वो अलग ये बात इसका है. PTSD बोल रहा है. शायद मेरा PTSD बोल रहा I don't है. know, But man. you know as the game progresses, अगर सरफेस और मुश्किल हो रही है और फंस रही है तो फिर वो पाकिस्तान को चीज इसी सूट ग्राउंड नहीं पे चेस किया था हमने 152. वैसे तो अभी इंडिया ने भी चेस किया है. ठीक है मगर वो Chase इंडिया किया. थी and they weren't chasing a big लेकिन total. फिर भी it wasn't as decisive as India could be, right? अच्छा, देखो. While नहीं chasing a फंसे target. थे वो भी. यही तो मैं कह रहा हूँ. and वो जो ड्रॉप कैचेस थे, Yeah. they were been taken, India would have been in a place of order. लेकिन अगर फिर- जाकिर अली कैच पकड़ लेता और फौरन पांड्या की विकेट गिरती ना Yeah. तो फिर फंस सकता था मैच. I mean, yeah, Pandya was the वो क्या कहते हैं, वो जो एक वॉल जो होती है ना. पीछे हाँ. जडेजा भी था यार. हाँ बहुत लंबी मगर batting अगर थी. पांड्या फौरन गिर जाता ना थोड़ा सा फंसते जरूर वो. Yeah, वो तो खैर ठीक कैच है, ही नहीं target- किया. अभी target भी थोड़ा इतना नहीं था. sticky था उनके हाँ. लिए. We do feel like target इतना नहीं था. 260 Yes. plus would have definitely हाँ. been No, been absolutely. competitive. But yeah, अगर एक दो विकेटें वहाँ पे गिर जाती, एक दो कैचेस पकड़ लेते वो लोग, तो it would have been a place of order. But I So एक आधा रन आउट it won't be like I don't think it would be wrong to say कि catches will win you matches Yeah, no, that's as cliche. उस particular game में और any game. हाँ any रोहित game ने भी जाकिर का 0 पे छोड़ा. हाँ उन लोगों ने तो खैर वो पहले पांड्या ने खत्म हो छोड़ा गया. हाँ. रोहित And then ने he छोड़ा scored. स्टंपिंग मिस की. बट पॉइंट इज दैट दिस इज अ सर्फेस व्हिच इज नॉट गोइंग टू बी अ 300 सर्फेस. नहीं, नहीं. इतना तो हम कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं. एंड द पावर प्ले इज की. और दूसरा यार यू नीड योर स्पिनर्स टू बी ऑन टॉप ऑफ देयर गेम. मसला ये पाकिस्तान के पास 1.5 स्पिनर है. 3 मिला के. हाँ that's the मिला big के issue. 1.5 spinner. I अच्छा feel मतलब like है 3 वो कह रहे हैं impact wise 1.5 है. Yes. the biggest pain point for Pakistan is that अगर लोग this कंफ्यूज ना हो जाए ना 1.5 कैसे. नहीं उन्हें पता है. उनको आइडिया हो हम चुका 3 पॉडकास्ट से Yeah. बात कर रहे हैं. But biggest pain point यही है यार कि you are not and you are Pakistan basically. Pakistan is not taking any wickets via spin in the middle overs. I miss Saeed Ajmal. Yeah, dude. यार आफरीदी अजमल हफीज वाला कॉम्बो Oh god. वो चाहिए what a था. lethal combo इस मैच that में वो was. चाहिए था. इस टूर्नामेंट में होते. Yeah. We've missed that for a while by अच्छा, the way. दूसरी- ये जो मिडल ओवर्स वाला मसला है ना हमारा ब्रो. हाँ. दूसरी- 2023 वर्ल्ड कप में क्या हुआ था? Same. Yeah. अच्छा एक और चीज एशिया ये कि कप। यार हाँ. इस तरह की स्लो सरफेस पे ना क्योंकि इट्स अ स्लो सरफेस कोई मैसिव टर्न नहीं है यूएई में. इट्स रियली स्लो. It doesn't come onto the bat Exactly. well ना. You need to bowl with a bit more flight, whereas I feel like अबरार तेज कराता है और वो खुशदिल भी डार्ट्स फेंक रहा होता है. That is a big issue. वहां पे मुझे डर है कि इंडिया पाकिस्तान को खा जाएगा. एंड बैटिंग ऑर्डर जो भी हो, जितना बड़ा मसला ये स्पिन ओवर्स का है ना थ्रू द मिडल, that is just I don't know how Pakistan countered that at this मेरे point. पास एक सोल्यूशन है. इस यार बात एक तो पाकिस्तान का ये भी मसला है कि स्पिन हमारे पास हो नहीं रही है. हमारे पास उतनी इफेक्टिव स्पिन नहीं है. दूसरा ये हम उतना इफेक्टिवली उसको खेल भी नहीं पा Yeah. रहे. एक रिजवान और सलमान ये दो. I would say South रिजवान सलमान are तैयब ताहिर भी बड़ा अच्छा Tayyib is a good player, but I spin. think वो थोड़ा लो है. Yeah. 5 which might not be a very bad thing on the Dubai on pitch. the bike pitch. I mean, we'll come to the 11s later. क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं, क्या हम खिलाना चाहते हैं. नहीं लेकिन तैयब की एक बात बहुत अच्छी है जो आपने कहा he maneuvers the ball really well. right. वो Snipper, कन्वेंशनल शॉट अगर yeah. उससे नहीं लग रही ना वो इधर खेलेगा इधर खेलेगा Yeah, इधर yeah. खेलेगा इधर वो खेलेगा. बहुत But he'll whippy है. somehow हाँ he will somehow get you the runs. फेंटता है वो बॉल को. हाँ, ऑफ हाँ. पे खेले या लेग पे, मगर वो शॉर्ट मिड विकेट पे बार बार आउट भी हो रहा है. ये भी बात. स्लो सरफेस का एक सोल्यूशन है मेरे पास. गालियां मत देना. How about run for whom? ये नहीं. I'm sorry, Sadi. I would have actually. Sorry. You know what? Actually, I am not 100% opposed to that idea. You know what I would have loved? A certain Shadab Khan for this game. या मैं तो कब से कह रही हूँ. Yeah, इस मैच के लिए तो वो काफी फायदेमंद होता. Not only is he or could have been handy with the ball in these conditions, but also he's someone who whacks spin really well. Yeah. खास तौर पे middle overs में, and then you get an elite fielder in him. So उसको मैं मिस करूंगा इस एक मैच बात में. मैं कहूंगी हफीज भी miss कर रहा है देखो by the you way. guys हाँ. are you guys are you know free to disagree with this but एक चीज मैं जरूर कहूंगी कि since we have lost Shadab from the ODI team हमारा balance out है बिल्कुल आउट. नहीं, and we have हम not क्यों गालियां हम देंगे? तो ये नहीं, कहते मैं हैं. कह रही हूँ you might disagree or someone might This disagree on the Pro Sports podcast is a popular opinion. हाँ, बस- और बस- वो उनके लिए नहीं. वो गालियां देंगे. आप बेशक हाँ मतलब I don't mind if somebody disagree with this that's fine but I do feel like कि जब से वो गया है तब से आपका balance out है बैटिंग में भी bowling में भी और फील्डिंग में भी. And that's not to say कि शादाब खान ही चाहिए. Yeah, it's शादाब not like- खान type player. Exactly. अब
अब अराफात को ब्लड क्यों नहीं किया? उसको गेम टाइम देते, क्या पता वो कुछ अच्छा कर जाता। क्या या तुम अराफात की बात कर रहे हो? उन्होंने इरफान नियाज़ी को 2 साल खिला के बाहर कर दिया। क्या ये भी, ये 2 साल तो नहीं थे, 1 साल भी, साल खिला। मुबस्सिर खान वाज एन ऑप्शन, बट वही अब देखो मेहरान मुमताज शाहीन के लिए विकेट ले रहा है, उसने बिग विकेट्स लिए साउथ अफ्रीका के खिलाफ। सो यू आर नॉट ब्लडिंग द राइट क्रिकेटर। सूफी मैक को, सुफियान मुकीम था, मेहरान था, आपके पास अराफात था, यू हैड ऑप्शंस। और सुफियान की तो भी परफॉर्मेंसेस थी, यू नो ही हैड जस्ट डन वेल इस सरफेस पे। यू नो आप लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन इंट्रोड्यूस कर रहे हो, मे बी ही कुड हैव ट्रबल्ड इंडिया, बट पॉइंट इज मसला बताती हूँ क्या, साल भर हमने ओडीआई क्रिकेट नहीं खेली, साल भर हमें आइडिया ही नहीं था हम कितने पानी में हैं, ठीक है? ये भी है, ठीक है, मगर अभी तो खेल ली थी हमने तो बाकियों और खास तौर पे होम पे तो खेली ही नहीं ना। मगर ये सही कह रहे तो ज्यादा ही हैं, खेली। बाकियों से तो ज्यादा खेली। अब न्यूजीलैंड को देखो, उन लोगों ने 9 ओडीआई खेले थे बिटवीन दिस चैंपियंस ट्रॉफी एंड द ओडीआई वर्ल्ड कप, और 3 तो उनके ट्राई सीरीज में है। और इंडिया ने क्या खेला? कुछ भी नहीं, बहुत कम खेला है। बट इंडिया हैज अ सेटल्ड स्क्वाड ना यार, दैट्स द वही थिंग। तो मैं कह रहा हूं, इंडिया हैज अ मच सेटल्ड, they were the finalists of the ODI World Cup. India- हम पहले राउंड में बाहर हो गए थे। इंडिया हैव मेथड बिहाइंड देयर मैडनेस। पाकिस्तान में एक तो ये स्क्वाड ही बड़ी थकी हुई है, पता नहीं किसने सिलेक्ट किया है, पांचों ने मिलाकर कबाड़ा बना दिया मेरे हिसाब से। Too many cooks spoil the Too many selectors spoil the squad. I'll update it for you. ठीक है? I had a feeling that this would be a straightforward job. Yeah. मतलब महीना पहले I had a feeling. Hijab, they didn't need to do all this firefighting. कुछ experimentation I think was a bit useless. Yeah. It was. और इतनी wholesale Unnecessary. changes, इतनी ज्यादा wholesale changes कि आपने रुख ही बदल दिया पूरी स्क्वाड। दो चेंजेस की जरूरत थी, साइम की बॉलिंग और बैटिंग कवर करने। और अगर तो टॉप 3 में बाबर 3 पे ना हुआ और क्या कहते हैं इमाम के साथ वन ऑफ तैयब और उस्मान खान इज नॉट ओपनिंग, देन आई वांट दीज सेलेक्टर्स सैक्ड मिड टूर्नामेंट। इनको ही अकाउंटेबल रखेंगे, रिजवान को तो रख नहीं सकते, रिजवान के पास तो पावर ही नहीं है प्लेइंग 11 बनाने की। यार आई डोंट थिंक तैयब्स गोना ओपन, आई डाउट इट, आई हाईली डाउट इट, बट उस्मान का तो चांस है। उस्मान मैं तो खिला उस्मान इज अ जेन्युइन ओपनर। यस, और यार impetus, you would know more this more than anyone, Hijab. He's your guy. He loves playing in the power play. He's a genuine opener. दूसरी बात ये कि I don't believe that he'll just block a lot of balls anyway in the power play. Either he'll go for it or he'll get out. You have to give him the directive to go for it, because आपने मेकअप करना है फखर जमान की कमी के लिए। उससे ज्यादा पता है क्या इंपॉर्टेंट है? उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार स्ट्रैटेजी तो बता दो, आपने पहले 10 ओवर कैसे खेलने हैं ये तो बता। It's not, I don't think it's even the more important thing is the strategy and the plan. You're not seeing that. It's not the player who's going to open. It's what that player is going to do. इस वक्त तो अंधे को भी नजर आ रहा है कि पहले 10 ओवरों में मैक्सिमाइज करना। You have to capitalize on the power play. स्पेशली दुबई में। बिल्कुल, वहां पे तो 2 ही चीजें हैं, आपके स्पिनर्स थ्रू द मिडल। एक दफा स्पिन लग गई ना मिडल में, it would get very difficult for any team. So you need to bowl good spin through the middle overs and counter spin in the middle overs, and you need to capitalize on the power play. पाकिस्तान दोनों जगहों पे वीक है, यही मसला है। बल्कि शायद प्लेइंग स्पिन थ्रू द मिडल में अगर रिजवान और सलमान खड़े हो तो आई हैव सम कॉन्फिडेंस, दोस गाइज आर रियली गुड प्लेयर्स ऑफ स्पिन। और कुछ लोग आगे से ये भी बोलेंगे यार आपने उस्मान खान को किधर रख दिया, उसकी तो परफॉर्मेंस नहीं है। वो भाई जो स्क्वाड मेरे सामने है ना, मैं उससे टीम बना रहा हूं, उसी में से निकाल रहा है ना। मैं कोई तीसरा बंदा तो जाकर ला नहीं सकता। देखो हमने तो शुरू में ही कह दिया था कि वी वुड हैव लाइक्ड अब्दुल्ला शफीक टू बी देयर, अ जेन्युइन ओपनर टू बी देयर। अब वो नहीं है, देन वी वुड हैव लाइक्ड फखर टू बी देयर, अब वो नहीं है। तो अब जब आपका जो 15 का स्क्वाड है, आपने उसी में से एक नाम निकाल के ओपनिंग स्लॉट में डालना है। बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि उसको इम्पोर्टेंट उसको बताओ तो सही यार, कि उसको बताओ कि तुमने खेलना कैसे। बिल्कुल, प्लान्स तो क्लियर हो ना, रोल क्लैरिटी हो, आपकी बिल्कुल फेज वाइज प्लान्स बने हो कि इस फेज में इतना खेलना है, इस फेज में इतना खेलना है। That's how all the teams operate. Exactly, and it's a science. It's not rocket science. Cricket is a science. Limited overs cricket is a big time science at this point. Even test cricket. टेस्ट क्रिकेट में थोड़ा फर्क होता है क्योंकि वो फेज वाइज प्ले नहीं होता, उसमें एक नई बॉल होती है और फिर बाद में वो डॉग ओवर्स होते हैं। सही I think I saw a reel of Jared as well when he was talking about Haris Rauf through the middle overs. Did you see that? Yeah, I'm pretty sure you saw that. That was a very important point. यार middle overs में नई विकेटें मिल रही हैं हमको। You are overly relying on Haris Rauf for wickets through the middle and at the death. इंसान है यार, और वो भी कई बार पिट सकता है यार, ऐसी बात नहीं है। और उस दिन भी he was bowling well, then he got the yips, run up से pull out कर रहा है और उसके बाद पिटा है। बस पिटा है। नहीं वो जो स्पेल था उसका अगेंस्ट टॉम लेथम यार, I swear to God, killer spell. That's where the momentum shifted. Sorry, Yeah. in that innings. Yeah. उस ओवर में पूरी इनिंग्स का रुख बदल गया। और अगर आपकी विकेट गिर जाती है उस टाइम पे, आई एम प्रीटी श्योर 320 तो नहीं होना। नहीं सवाल ही पैदा नहीं होता। और 320 ज्यादा था उस विकेट पे, बट देन अगेन आपने कौन सा बारिंग हारिस रऊफ, यू डोंट हैव एनी विकेट टेकर्स। सलमान अली यादव को आपने ज्यादा बॉलिंग नहीं दी, आई थिंक 3 ओवर कम थे। ही हैज बीन इन अ हाई परफॉर्मिंग पार्ट टाइमर, राइट? बहुत अच्छा कर गया सलमान अली यादव, ही हैज सुपरसीडेड ऑल ऑफ आवर एक्सपेक्टेशंस। खुशदिल का ये है कि ऑन हिज डे वो रन्स नहीं ज्यादा देगा, बट इन ओडीआईज दैट मैन कैन नॉट बाय अ विकेट। यार हाँ, Maybe I think
उसको यूटिलाइज बाय विकेट अगर वो पावर प्ले में शुरू में कराए, हाँ पावर प्ले में कराए, आई एक्चुअली एग्री विद दैट। मैं ये कहने लगी मुल्तान भी तो यही करती थी, हाँ, थोड़ा सा उसकी यूटिलाइजेशन बेहतर हो सकती है। लेकिन एंड आई एम प्रीटी श्योर रिजवान नोस दैट क्योंकि रिजवान और खुशी यूज्ड टू प्ले द सेम Abrar is थिंग। doing pretty well in the power play Yeah, as well. that's one thing that's working for Pakistan. मगर अबरार का मसला यही यही है ना यार कि फिर अगर शुरू में ही सबको करा देना मिडिल ओवर्स middle कौन कौन- करेगा? और वो hot and cold है. Abrar will have one good game, two poor ones. Then two good games, one poor one. He's inconsistent and he hasn't like run through batting orders. ठीक है? He's not incisive to that point. That's also an issue. तो अगर खुशदिल और सलमान और अबरार से उस लेवल पे आपको विकेटें नहीं मिल रही तो यार बहुत मसला हो जाएगा यूएई में. यार मुझे समझ नहीं मसलूसेस. ये हमारा 1.5 साल हो गए यही इशू रहे यार ये पिछले वर्ल्ड कप में भी मैं यही वही इशू था. कह रहा हूँ ना, पिछले वर्ल्ड कप में सेम ये इशू था. हाँ, हमारे तब स्पिनर्स नहीं कर रहे थे, नवाज और शदाब से हाँ, नहीं हो रही थी bowling. और ओसामा मीर, हाँ ये थे, नहीं चल रहे थे. नहीं, Yeah. हाँ, they were हाँ, not और- effective at all. मिडिल ओवर्स में नहीं चल रहे थे, कोई प्लान्स नहीं थे कि किस तरह क्या करना है. और 1.5 साल बाद भी सेम इश्यूज हैं यार, रिजॉल्व ही नहीं करने की कोशिश अब तो प्लेयर भी बदल गए. प्लेयर भी बदल गए, तो मसला क्या है? और आप जब स्क्वाड बना रहे थे, Planning. अच्छा आपके सामने इंडिया की स्क्वाड भी थी who were overloaded with spinners. Spinners, हाँ. आपने क्या नहीं सोचा कि हमें अपना एक मैच यूएई में भी खेलना है? एक और स्पिनर और ले आया. मैं ये भी मानता हूँ कि यार, पाकिस्तान के आमतौर पे आपके- पेसर्स ही जाते हैं इंडिया के खिलाफ. इट्स यूजुअली नॉट अ स्पिनर. Obviously. बट देन अगेन यू हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द कंडीशंस और सेलेक्ट अ स्क्वाड अकॉर्डिंग टू द When we were doing कंडीशंस. shows, in the build-up of CT on PTV as well, तब भी मेरा सवाल अपने एक्सपर्ट से यही था कि don't you think that we should have had a little bit more spin Cover. considering Who कि are the हमने अपनी experts? सबसे important game जो है वो वहाँ पे खेलनी है. शेबी था एक तो. Shoaib Shebi Akhtar, और Bazir Bazir Khan, Khan, Sana was there as well, and they all like agreed to that point कि बिल्कुल. you did need a solid spin foundation, but you are afraid to give chances maybe to the youngsters. You've gone with Abrar as the lone frontline spinner. He's got no cover. No. I think that is a recipe for disaster. It is. बिल्कुल. It is. मतलब आप अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रहे हो. ऐसा ही है. या खैर जानी सेगमेंट कर लें जानी- बिफोर आप लोग बिफोर भी द जानी- 11th. हाँ, जानी ऑफ द पॉडकास्ट बन सकते हैं, जो कि डिस्कॉर्ड का स्पेसिफिक चैनल जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं. हिजाब को भी बोलो. हिजाब को मेरे भी से आप यही बातें करते मगर खैर साथ हो मेरे साथ तो आप एक्सक्लूसिवली बात कर सकते हैं. एक्सक्लूसिव सिव तुम बहुत he puts a lot of importance on it. मेरे से exclusive हाँ, बात कर सकते बिल्कुल. हैं आप लोग. और फैंटेसी में वार्ड लिखते हैं Yes. predictor For and- somebody who's exclusively talked to Behram, मैं बता दूं इतना वो खास experience नहीं है. But you can यार- experience it on यार, क्या कर रही हो? at least I'm entertaining. क्या कर रही हो? हाँ, he is entertaining. He is He is entertaining. entertaining. ये मैं गारंटी देता हूँ इस बात. आपका दिमाग खा लेगा ये. चुप नहीं होता. अब बेराम की बुराइयां करने लग गए. जानी आ जाओ. सारा और, मलबा पीसीटी पे क्यों गिरे? थोड़ा यहाँ भी तो गिरे. बनने के 2-3 तरीके. पेट्रियन लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से सब्सक्राइब कर लो. इजी पैसा है 031936025545 इज द नंबर. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो. बेराम को ना मुझे ना करना. हाँ, और मैं डिटेल्स दे दूंगा. उसके अलावा शर्टें भी मांग लो भाई. या शर्टें का और जर्सीज का ये सीन है कि इफ यू गिफ्ट द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट एन ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सी तो पर जर्सी 6 months के लिए जानी बना देंगे. तो जहां वो 1500 रुपए में आपको 1 month मिल रहा है, जर्सी विल गेट यू 6 months. इट्स अ बेटर ऑफर एंड ऑल वी आर आस्किंग फॉर इज ऑथेंटिक स्पोर्ट्स जर्सीज. कोई भी टीम हो, कोई भी स्पोर्ट हो, डोमेस्टिक इंटरनेशनल डजंट मैटर, बस नॉक ऑफ ना हो. और अगर पाकिस्तान की अब मैंने खरीद ली अपनी चैंपियंस ट्रॉफी की जर्सी, अब 7 को अगर आप भेजोगे तो उस जर्सी पे आपको 9 months भी मिल सकते हैं. एंड आई हाईली encourage you guys to become Janis of the podcast because Saad and I are on a mission and our mission statement is to change the landscape of sports coverage in Pakistan. ये sensationalism, मसालेदार खबरें, नो मसाला भाई. सनसनीखेज content, we're sick of this and we're trying to change that or turn that tide. And यार मतलब we try to enrich your sport watching experience via the podcast and the website and all of the stuff that we do, but we want you to enrich ours as well. We're not know-it-alls. We're students of sport. हम constantly सीख रहे होते हैं, upskill कर रहे होते हैं. So come and challenge us, come debate with us, मगर तमीज के दायरे में. No racism, abuse, discrimination, misogyny और homophobia will be tolerated. ऐसी कोई instance भी हुई, सीधा बाहर. सीधा काट देंगे. काटो We'll काट. chuck you out straight away because this is an inclusive community where we welcome everyone. बाकी यार existing जानीस को बहुत बड़ा thank you. Love you guys. Your money goes a long way and it's not like Saad and I pocket this money. These funds go towards making pro sports a financially feasible operation. Yeah. ठीक है. और अगर हम financial success हो, we can bring even more grade A sports content to your screens, website हो, podcast हो, जो हर भी हो, जगह. भर देंगे आपकी स्क्रीनें. ठीक है. और या मैन लाइक गलती होती है तो हम यहीं आकर ओनरशिप लेंगे. विल ओन अप टू आवर मिस्टेक्स. सो
You keep us accountable, we'll keep ourselves as well. And बस जैसे साथ कहते हैं सीधा टेक ओवर भाई. Hashtag. साथ कहते हैं और Hashtag. सीधा टेक ओवर. And hashtag. Fix yourself. आज गाना नहीं गाऊंगा, हिजाब पॉल ऑलरेडी बहुत मजाक उड़ा रही है. हाँ, पता नहीं क्यों वैसे. कोई मसला Roast है fun, you guys. रोस्ट सेशन चल रहा है यहाँ मेरा. पे फटे करवा रहा हूँ. अच्छा, so now we come to our 11th segment. And Hijab, we did this for the first preview as well. What we do over here is कि 2 11s बनानी है या 4 11s बनानी है. एक बनानी है जो आप खुद चाहते हो for either team, and the other one is the 11 you What is expect. most likely to happen? हाँ, Yeah. हाँ. So let's start with you. What 11 would you want Pakistan to field? यार आई थिंक आपका फोर्स चेंज तो एक है ही है, which is Fakhar Zaman. You'll have to replace him with of course you would want to replace him with a genuine opener जो आपके पास इस वक्त नहीं है. और लेफ्टी भी इमाम है. है यार. हाँ, opener है यार, क्यों अब है ना basically replacement. So I think the only change that I am expecting expecting reality, बता yeah, रही हो. I'm most likely will happen is that Imam will replace वो तो Fakhar. आएगा ही. I don't believe और कोई changes I होंगी? honestly don't believe that there will be any more change. Now, अच्छा. हाँ, I don't think चलो so. that's your expected. Now what do That's you my want? expected. Honestly, मुझे तो थोड़ा डर लग रहा है, लेकिन ये कि I would want कि they should open with somebody a little bit more dynamic. Yeah. You've got to ले लो यार, chance ले लो. You took a chance on Fakhar in CT17 and look Yes. how that paid off. Absolutely. Of course, all of the players are our players. We back them all. जो भी खेल रहा है, जो भी field पे है, they have our full backing. So बिल्कुल. if you can open with somebody like Usman, I won't be opposed to that. Absolutely. Who goes out? Huh? Who goes out? Yeah, who Fakhar goes goes out. No, Imam doesn't come in. Imam doesn't come in. No. Oh, So damn. Babar and Usman open Yeah. for you. Acha, that's interesting. So for me, you can either do Imam and Usman. Like आप बाबर को फिर वन डाउन भेज दो, जो कि मुझे नहीं लग रहा कि वो कर रहे हैं, क्योंकि हम कहीं जा रहे हैं कर लो, लेकिन हमारी कोई नहीं सुन रहा. हमारी सुन कोई नहीं रहा. And the entire Imam and Usman. Imam Usman, Babar one down, Sauchakil goes out. अच्छा, for me it's a bit different. ठीक है, सबसे पहले तो यार the entire management seems sold on the idea कि बाबर को ही open करना है. Which I don't really get. I don't get that either. He's averaging 60 at first drop. He's got 1900s. Why mess around with that? अच्छा, मजे की बात, लास्ट टाइम भी हमने ये बताया था, बाबर का एंट्री पॉइंट जब आउट ऑफ पावर प्ले होता है, Yes. he's averaging and strike rate उसका बेहतर है. Yeah. पावर प्ले. स्ट्राइक रेट तो कंसिडरेबली बेहतर है और एवरेज भी कुछ 4-5 रन बेहतर है. बट और हाँ, अब मतलब तो एक दफा पावर प्ले खत्म हो जाता है, you see a different बाबर. एब्सोल्युटली. और दूसरी चीज ये यार, मैं अपना बता दूं. I'm seeing a different Babar these days. I suppose so, but here's to hoping यार something happens and he comes back with his Something has to give. हाँ, something's got to give at this point. अच्छा, एक और सवाल रैंडम मेरे दिमाग में पॉप अप हो गया. Was this Babar's जो पिछले मैच में थी worst innings ever? Worst 50 ever. ODI cricket. Worst innings ever. Innings तो और बुरी होगी कोई ना कोई. I don't think so. यार 50 तो सबसे बुरी When है. you check out the magnitude of the game and run chase जब लगाओ. The task at hand was such कि 81 ball 50 is inexcusable. ODI cricket. Yeah. I think that was his worst. Could be top 3. Yeah. Top 3 तो easily और है. मुझे याद नहीं आ रही कोई. Yeah. अच्छा, anyway, so I'm going to go a bit different to both of you guys. Okay. ये मैं want बता रहा हूँ अपनी. Want. What I want Pakistan to field, और मुझे पता है कि करेंगे नहीं ऐसा. हाँ. I'll go with Imam because of course एक genuine opener तो चाहिए. Yep. Usman Khan is pairing up with him as the second opener just because he can provide you with that impetus that you will miss in the power play. ऐसा ही है. Fakhar चला गया, आपको fire power चाहिए. You have to maximize the power play in Dubai. If you don't, that's like half the battle lost. ठीक है, और रोहित तो करेगा. रोहित 3 पॉइंट है, अगर ठोकेगा आपको, सही है. फर्स्ट ड्रॉप पे बाबर ही लाऊं मैं, सही है. और 4 पे मैं रिजवान को ही रखूं. I wouldn't fiddle with that. He's done really well at 4. नहीं, रिजवान की जगह नहीं चेंज करनी. हाँ, he's averaging what 51 at number 4 और अब शायद थोड़ी गिर गई हो, but that's exceptional and he's got the bulk of his अब runs. गिरी होगी. उसने 4 पे खेला ही नहीं था. ओ हाँ, उसने तो 4 पे खेला ही नहीं था, वो तो 3 पे आया था. बट यू नो, उसके अगर कोई 2700 रन्स हैं तो उसमें से कोई 75% से ज्यादा ही आई थिंक 4 पे आए हुए हैं and he's averaging 51. Yeah. So उसको मैं मत छेड़ूं. 5 पे I want South Shakil. नहीं, I'd bring in. Surface हो जाएगी slow. You need a good player of spin. I think Tayyib Tahir. And you need a lefty. I think Tayyib Tahir does that job. No, Tayyib Tahir is not a lefty and I don't care. अगर तुम मुझे बोलो ना कि स्पिन खेलनी है किसी एक बैटर ने, साउथ या तैयब, I will always go for South. I would go for South अगर नॉर्मल क्रिकेट खेलनी हो, लेकिन अगर आपको एक्सेलरेटर चाहिए. जानी यहाँ पे शायद नॉर्मल क्रिकेट ही खेलनी है बाद में. But I do feel like. But I. तू समझ नहीं रहा. 5 पे सलमान अली आगा खेले मेरे लिए तो वैसे ही.
या ये भी तुम्हारा पॉइंट गलत नहीं है। खेले पर तो खैर वैसे ही आगा सब को आई fight फील लाइक क्योंकि उसने इंटेंट काफी दिखाया, ही शोन सम प्राउस हिटिंग द बॉल, आई वुड स्टिल टेक हिम एट आई थिंक 6। वो आपका पॉइंट ऑफ एंट्री पे भी डिपेंड करेगा कि कहां वो एंटर कर रहा है, बिल्कुल। बट मैं थोड़ा सा इंक्लाइंड हूं टुवर्ड्स साउथ। आई डू फील लाइक यहां पे शायद आपको बहुत ज्यादा छक्के चौके बिल्कुल की जरूरत Maybe शायद ना he- पड़े। मुझे लगता है उस वो पोजीशन कंडीशन में चाहिए होगी। आई थिंक साउथ की पोजीशन में यू नीड अ गुड स्वीपर ऑफ द बॉल, Yeah. बार बार स्वीपे मारे, गैप्स मुझे निकाले। तो लगता है विपियां चाहिए you'll आपको। have to Doubles. you'll have to frustrate their spin. I don't think यार ऊपर से ये anyone देखो, has that they've got ability. two left arm orthodox spinners in Jadeja and Akshar, and South is a matchup with them. तो Yeah. वो आकर उनको स्वीपर आराम से मार सकता है। उन लोगों ने 20 ओवर कराने हैं। और कुलदीप भी है फिर। Yeah. कुलदीप भी तो उसका मैचअप बनता है ना। कैसे? अच्छा नहीं, कुलदीप उसका मैचअप नहीं बनता, नहीं कुलदीप दूसरी तरफ जा रहा है, मगर कुलदीप बहुत गुगलियां मारता है, ही इज अ रॉन्ग एंड किंग। तो या अच्छा वो भी इंटरेस्टिंग है, ही डिडंट हैव अ ग्रेट गेम प्रीवियस हाँ, he गेम, was- वाजंट इंसाइसिव, Yeah. बट पाकिस्तान है, हाँ, उसको- कुलदीप ने फॉर्म में आ जा रहा हाँ, है। form सो में। एनीवे माय रैशनल फॉर साउथ इज दैट ही आई थिंक इज योर बेस्ट प्लेयर ऑफ स्पिन, एटलीस्ट टेस्ट क्रिकेट में तो है। मुझे ये लगता है खुदा ना खासा अल्लाह ना करे अगर वो आपके ऊपर से विकेट गिरती हैं, आई फील लाइक समबडी लाइक साउथ शकील He can- कैन एब्जॉर्ब दैट प्रेशर, Yeah. कैन प्ले लॉन्ग। 50 ओवर खेलने हैं ना। हाँ I haven't seen him done that in ODIs. yes I'm but he sorry. can, we But know that he can but- hold but the we know fort। that he can. He can hold the fort, लेकिन ODIs में अभी तक किया नहीं। यार, खैर, अभी तो उसे वैसे ही ऊपर खिलाने सादी गलत पोजीशन पावर में, प्ले I में तो don't think- वो प्लेयर ही नहीं है। You're- नहीं है, you're करता। fiddling वो मैं with मानता you're हूँ, वो मैं fiddling with मानता this हूँ, वो position मैं ना। मानता हूँ, हाँ। लेकिन Yeah. despite that उसने कुछ इस तरह का पता ODI क्रिकेट में नहीं, मुझे show आई नहीं वुड किया। टेक साउथ ओवर तैयब बिकॉज़ आई फील लाइक ही इज एन एलीट प्लेयर ऑफ स्पिन, और आपको मिडिल ओवर्स में I साउथ think जैसा Tayyib बैटर is really चाहिए। good against spin as well. पता नहीं, आई is. डोंट नहीं, नो। he is ऐसा नहीं है, really he good is really against good against spin. He उसके पास you feel like when he's playing spin you feel like he's all the time in the world, ठीक है? उसको पता, and he's very good with his placement as well. हाँ, वो अच्छा है उसका, placement- picking out the gap. picking out the gaps, he's very good with his placement, he's unorthodox and everything, but do feel like he's still a bit shy experience wise. Yeah. He still hasn't experienced that साउथ ने kind कम of से a कम pressure. साउथ ने cricket टेस्ट में क्रिकेट परफॉर्म किया। ऊपर से यू गाइस आर फॉरगेटिंग दैट साउथ एट टाइम्स इज अनऑर्थोडॉक्स एज वेल। Yeah. ही विल कैंप ऑन हिज लेफ्ट लेग और पीछे रैंप वगैरह निकाल देता है, इसलिए ही इज माय अभी तक देखा नहीं ही इज ODIs माय में। पिक फॉर नंबर 5। नंबर 6 पे सलमान, थोड़ी सी डिमोशन है। मैं सलमान को ना I हटाऊं think ऐसे I would 5। ठीक है, तो यू आर एंटाइटल्ड टू योर ओन ओपिनियंस आदि। लेकिन तो लाइनअप बना रहे हैं ना। हाँ तो अपनी बनाना ना, तो ये जब मैं मेरी बना है। रहा था तो तुमने बीच में काट दिया, तो मैंने कहा अब उसी में बना लेते हैं। चलो तुम बताओ। स्टार्ट तो मैंने किया टॉप था ना। 6 मैंने दे दिया, तुम अपना टॉप 6 यही हो गया ना मेरा। अच्छा तुम्हारा यही 5 टॉप पे 6 है। सलमान अली आगा, 6 पे तैयब अच्छा, so तारिक। the only difference between Saad and my top 6 is that I'm going with Saud at 5 and then Salman at 6. 7 पे अब खुशदिल कोई खेलना है, वो ओवर हाँ, चाहिए आपको, हाँ, क्या कर सकते हो? वो And change नहीं कर सकते। good for यही तो Fakhar। मैं कह रही हूँ, I don't feel like you have the liberty to make a lot of changes. हाँ, you don't- मैंने good for No, Fakhar because- कह दिया है। मैं भी अजीब ही, I think I still haven't gotten over that We video. miss you, we miss you, Yeah, Lala. we do miss you Fakhar, और मतलब stay strong। Yeah, वही, रिजवान एयर हग ले लो मेरी तरफ से एक। 7 हो गए। 7 पे तो खुशदिल ही आएगा, और पता है गुड थिंग इज दैट खुशदिल हैज स्कोर्ड सम रन्स नाउ इवन दो द सर्फेस डजंट सूट हिम। Not Yeah. really. अच्छा फिर आपके आगे तीनों सीमर्स, शीनो, सीमो, हारिस और फिर अबरार। चेंजेस ज्यादा कर ही नहीं कर ही नहीं आप इस सकते ना, squad के नहीं साथ। कर सकते। सो तुम्हारी और मेरी जो वांट वाली 11 है उसमें एक एक फर्क फर्क है, है। और हिजाब जो है शी वांट्स टू ओपन विद बाबर एंड उस्मान। नहीं, I want to open with Imam and Usman. I अच्छा। do feel like they won't do that, हाँ। but हाँ। I think they should do it. और बाबर को please one Please, down दे yeah. दें. I feel like he has scored runs. Not on the pace that was required, given that. But runs तो runs है ना. He has scored runs. भाई कर लेगा वहाँ पे भी. Just give him his original position back. You know he can do a job in theory as opener हिजाब, but इस वक्त उसके करियर में जहाँ पे इतना बैगेज है, यार, he's हाँ। got a monkey on his back. Why are you fiddling with Babar right now? ये टाइम नहीं है इसके साथ थोड़ी एक्सपेरिमेंट ज्यादती है, करने थोड़ी का। ज्यादती है। है थोड़ी ज्यादती। यार लास्ट इनिंग्स की अगर मैं बात करूं ना बाबर की, तो 2 इश्यूज मेरे लिहाज से थे। एक तो बाबर का खुद अपना इशू था कि वो he wasn't taking on the attack. He was knocking it around forever. forever. क्योंकि काफी ज्यादा लोगों ने ये जो बाबर एफसी के फैंस है उन्होंने बोला कि फखर आ गया था तो सिंगल्स भी नहीं निकल रहे थे, डबल्स भी नहीं निकल रहे थे, तो मोमेंटम टूट गया। टूटा है। लेकिन उसका काउंटर आर्गुमेंट ये है कि जब फिर सलमान अली आगा हाँ, मारने लग गया तब कब का था बाबर? तब भी वो नॉकर आउट। और मुझे सबसे बड़ा मसला उसका जो मेंटालिटी है ना चेंज करने की अपनी गेम। थोड़ी complacency नजर आ रही है। बिल्कुल हाँ, थी। हाँ। और लोग कह रहे हैं सेल्फिश व्हाटएवर, नो आई वोंट यूज Like दैट टर्म। selfish Like- तुम। नहीं, आई like एम नॉट we- गोना यूज दैट वर्ड बिकॉज़ वो टीम के लिए खेलता है, And we मगर do यार get the fact कि अगर आपने इस तरह का टोटल चेस करना है, then you do need somebody to stay on the crease for a very long amount of time. बट आई थिंक जो गेयर शिफ्टिंग थी वो काफी हाँ, पहले हो जानी चाहिए। बिल्कुल। अगर हो जाती इवन 10-15 बॉल्स अर्लियर, अगर वो गेयर शिफ्टिंग हो जाती, आई थिंक लाइक वी हैव सीन बाबर डन इन प्रीवियसली एज वेल, वो शायद आपका वो रन डेफिसिट आपकी बड़ी जल्दी कवर हो जाती। यार हिजाब इसने 5 चौके शुरू में मार दिए थे, और Yeah, उसके बाद ही exactly. डिडंट स्कोर अ बाउंड्री फॉर एवर, Yeah. फॉर Like एजेस, That's what I'm इयॉन्स। saying ना, that's what I'm saying. एक 17 उम्र overs गुजर आ गई थी, बर्थडे आ गई थी फिर से।
ठीक है 17 ओवर को हाँ आई मीन इट लाइक जैरेड ने बोला था ना कि समवेयर आउट देयर बाबर आजम इज स्टिल बैटिंग प्लेइंग डॉट बॉल्स दैट वाज द फेज वेयर ही मेस्ड अप उसका फिर छक्का लगा 50 के बाद देन ही वेंट फॉर 2 स्लॉग स्वीप्स वर्सेस सैंटनर एक चौका एक आउट थोड़ा सा ना वो झटके की जरूरत है हमारे प्लेयर्स को इन द मिडिल बिल्कुल थोड़ा सा झटके की वेदर दैट्स बैटिंग और बॉलिंग उनको थोड़ा सा ना मिडिल ओवर्स में हिलाने की जरूरत है जंप स्टार्ट करो आई डोंट नो इफ इट्स टू मच T20 आई डोंट नो व्हाट इट इज बट ये कि वो थोड़ा सा ना आई थिंक वो सो जाते हैं थोड़ा सा भी यार if anything too much T20 should have fixed that if you think about it right तो बाबर ने वो जो है ना 5 चौकों के बाद जो स्लो डाउन किया मैं उस चीज को बहुत like I'll be overly critical even on that I think that was unforgivable अच्छा but that's not to say कि अब उसको टीम से निकाल दो अब दूसरी वापस ला फर्स्ट ड्रॉप दूसरा इसका जो पहलू है वो ये that you still rely heavily on him yeah You do. of course you do there is no other way Babar please there is बाबर no other way भाई कोई मौका दे दे तारीफ करने का यार we all love you over here man don't do this to us तारीफ हमने की और बहुत सालों तक की है कर ली 2 साल हाँ। खत्म हो गए हैं don't do it to us like this but Babar. that means that we उतनी ही expectations हमारी बढ़ भी गई हैं मसला ये था ना एक्चुअली यार- एक्सपेक्टेशंस उसने यहाँ पे लाके रख दी थी उसके बाद उस मोटर लॉग नहीं किया वो नीचे गिरा मैंने देखा कुछ लोग जो है ना दे कंपेयर हिम टू केएल राहुल एंड एडन मार्करम जो 2 प्लेयर्स हैं हु नेवर लिव्ड अप टू देयर ट्रू पोटेंशियल वी ऑल नो हाउ टैलेंटेड दे आर कमाल प्लेयर है यार बाबर इज नॉट दैट सेम प्लेयर बाबर का जब टाइम था तो वो दुनिया में बेस्ट कर रहा था ये भी तो फर्क देखो द पीक वाज बहुत कम टाइम में ही अचीव दैट हाँ दैट पीक वाज इमेंस इट वाज अदरवर्ल्डली याद है वो भी ब्रॉडकास्ट पे ग्राफिक दिखा रहे थे ऑफ इनिंग्स बिटवीन 1000 रन्स यार बीच में उसकी 3 to 4 और 4 to 5 की कुल मिलाकर 2000 रन उसने किए कुछ 30 से कम इनिंग्स में Exactly. इट्स That's क्रेजी insane. इट इज इट्स फ्लैट आउट और बैट शिट क्रेजी राइट सो लेट्स होप कि बाबर को किसी तरह He's ये a great डिमोट कर दे accumulator. We know that. He's a great accumulator. We just need a little bit more game awareness. यार honestly even more rotation of strike that was the word I was looking for we just need a little bit more game awareness and we know कि बाबर loves chasing. उसको जब पता हो ना कि सामने टारगेट क्या है, he loves to plan out his innings. बस वो थोड़ा सा हमें वो झलक वापस चाहिए. यार और मतलब he hasn't scored an international 100 since that Nepal one. That was a long time ago यार. Yeah. Asia Cup 2023. तो he needs to get that monkey off of his back. वही तो मैं कह रहा हूँ इतना बैगेज और आपने उसकी जगह बदल दी. ये टाइम नहीं था. खैर अब करेंगे तो वो ये नहीं. Expected तो यही है कि इमाम और बाबर बेस्टीज जो हैं वो ओपन करेंगे. 3 पे प्रॉब्ली ये साउथ को ही भेजेंगे. गलती कर रहे हैं. साउथ को अगर आपने खिलाना है तो साउथ को तो मिडिल ऑर्डर में खिलाना है. 4 पे उससे ऊपर नहीं साउथ को जाना चाहिए. 4 पे रिजवान, 5 पे सलमान करेंगे ये लोग और 6 पे तैयब और 7 पे खुशदिल और नीचे वही चारों शाहीन नसीम. चेंज बेसिकली एक ही चेंज करेंगे. शाहीन नसीम, अबरार और हारिस खिलाएंगे ये लोग. आई थिंक दैट्स व्हाट दे गोना डू एंड दैट्स व्हाट काइंड ऑफ irks me which is why I want the selectors to be sacked mid tournament if that happens, जो कि वो भी होगा नहीं. एक तो पता नहीं यार इतनी गंदी आपने अपनी ये हायरार्की बना दी है ना कि अब हम ब्लेम भी किसको करें सेलेक्टर्स के अलावा. देयर इज नो अदर वे टू पॉइंट यू नो. एंड देन देयर इज आल्सो दिस वन थिंग कि स्क्वाड वो सेलेक्ट जब करते हैं तो चेयरमैन साहब के सिग्नेचर के बगैर वो अप्रूव नहीं होती. कौन सी दुनिया में ऐसी जगह ये चीज होती है? आपको सेपरेशन ऑफ ड्यूटीज करनी है ना. हर किसी को अपनी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है. पता नहीं. आई हेट दिस कल्चर इन पाकिस्तान. अच्छा वी आर ऑफ्टन आवर ओन बिगेस्ट एनिमीज इन दिस कंट्री. ऑफ्टन नहीं शायद सारा वक्त. इंडिया की लाइनअप पे आ जाए. अच्छा वैसे एक मेरा सवाल है. हिजाब यू वर्क वेरी क्लोजली विद द मुल्तान सुल्तान्स जीएम थी. व्हाट वाज द सिलेक्शन प्रोसेस ओवर देयर? हाउ डिड दैट वर्क? यार the selection process was basically 3 or 4 people who used to sit together, used to see the historical data, used to see who can be the most effective. So venue, opposition and of course the current form. Those are the 3 things जो कि आपकी सबसे ज़्यादा देखी जाती हैं. If you're winning then it's not a big hustle to select a team क्योंकि आप usually you go with the same kind of unless there's a massive change in the conditions which doesn't really happen in PSL. It's more or less the same. मुल्तान से निकलते तो होता है. हाँ मतलब लेकिन I won't say कि बहुत ज़्यादा होता होगा. लेकिन I don't believe कि इसमें बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि हम एक ही मुल्क में खेल रहे हैं. But when it's like multi जब इतने दूर दुबई और लाहौर और दुबई और कराची वाली जब आपकी होंगी तो that's a different thing. But ये कि उसमें ये चीज़ होती है. But when you're losing that's when it becomes a little bit you know difficult bit. इसमें कप्तान का बहुत बड़ा रोल होता है. यही पूछ रहा था मैं कि कप्तान और कोच का बहुत बड़ा रोल होता होगा. कोच, कप्तान and coach not just the head coach but even the spin bowling coach, the fast bowling coach, इन सब का बहुत इसमें होता है. And also I think 95% is just the captain. वो इसलिए क्योंकि खिलानी उसने. ठीक है. He knows. मुझे यही आता He है. can visualize मैंने किसको फील्ड में कहाँ खड़ा करना है. He can visualize के अगर हम he can visualize all kind of situations. Collapse हो गया तो क्या करेंगे. टॉप ऑर्डर चल गया तो क्या करेंगे.
पावर प्ले में विकेटें नहीं आई तो क्या करेंगे? Basically, Jab, what you're saying is you always have contingency plans in place. 110%. Plan Z तक. हाँ, 110%. You realize the fact कि कुछ भी हो सकता है. You realize the fact. The data helps you, of course, in basically determining कि किस चीज के होने के चांसेस ज्यादा है. और डेटा तो बहुत है. अस्तगफिरुल्लाह. ये that's the stuff of nightmares वैसे honestly. लेकिन ये कि data helps a lot, but it's not just only data. रिजवान की एक बात बहुत अच्छी है. He goes very heavily on his instinct. ऐसा नहीं कह रही कि वो डेटा पे बिलीव ही नहीं करते या he doesn't look at it. He looks at it. But जब वो ग्राउंड पे होते हैं ना, a lot of the decisions that he's making at the time is instinct. And I felt like that a lot of them actually do pay off as well. जो शायद ऑन पेपर आपको लग रहा होगा नहीं दिस इज वेरी अनऑर्थोडॉक्स वी माइट नॉट बी एबल टू पुल दिस ऑफ बट ही हिमसेल्फ इज फीलिंग कि यार ये कमजोरी है. I think he will be challenged when India lose a wicket in the middle overs. If they lose a wicket in the middle overs and they send in Akshar as a floater to kill off your spinners. वो बहुत बड़ा मसला हो सकता है. वैसे आजकल तो वो 5 पे ही खेल रहा है आजकल वाकई और अच्छा खेल रहा है. अभी नहीं चला मगर he is doing really well over there. चलो India 11s. I think same है. अच्छा I will say this कि I feel like Harshit Rana as good a game as he's just had. Arshdeep Bhai उसकी जगह. I know Harshit took 3 for 31 और yes, left arm angle who can move the ball in both directions. पाकिस्तान के खिलाफ और अर्शदीप वैसे ही हमें बहुत तंग करता है. हाँ, elite new ball bowler. यार मुझे लगता है कि न्यू बॉल से तो वो शानदार बॉलर है. हर्षित राणा डिड ओके विद द न्यू बॉल, बल्कि वो जो कैरी उसको मिल रही थी और बीच-बीच में जो बाउंसर मार रहा था. Why do you believe he was left out in the first game? I don't know. I feel like this is a Gautam Gambhir decision. थोड़ा सा मुझे I was a bit surprised. I thought कि अर्शदीप को सेलेक्ट करने का मकसद ही ये था that he plays. That he plays. अर्शित राणा पसंद है. हाँ, बुरा नहीं है. नहीं गौतम को. हाँ, मुझे भी बुरा नहीं लगता अर्शित राणा. If anything, I'm a really big fan of his change of pace. और वो slower ones अच्छी कराता है, बल्कि ज्यादातर तो वो slower ones ही करा रहा होता है. नहीं, he's a very good bowler. लेकिन गौतम को पसंद भी वो ज्यादा है. He can crank it up at times, gets good carry. अर्शदीप जो है वो swing bowler है. New ball के साथ वो swing करेगा, but then again I feel like that's a big weapon against Pakistan. Exactly. Yeah. So they should. Even against Bangladesh it was यार. कह तो कुछ भी नहीं सकते कि इंडिया क्या खिलाएगा. I think we can't even expect an 11. अगर अर्शदीप फिट है, he should play. I think unchanged जाएंगे. Unchanged ही जाएंगे. यार खिलाना अर्शदीप चाहिए. सही है. वो जाएंगे. I would play Kuldeep ahead of Varun because it's Pakistan. और कुलदीप को मैं confidence दूं. He is the more experienced bowler even if Varun is in form. कुत्ती form लगी हुई है. और कुलदीप हमें पता ही है क्या. Kuldeep versus Babar back in 2019. Everyone remembers that dismissal. And then what Kuldeep did to England in the 2023 ODI World Cup was just क्या wrecking ball था. Carnage. Yeah, absolute carnage. Yes. So yeah, उनका तो batting order तो it kind of picks itself. एक लोगों का अच्छा I want your opinion on this. I'm a little envious कि उनका कितना settled batting order. कि ऋषभ पंत bench पे. बल्कि वैसे पता है all respect to KL Rahul had a good knock अभी भी even though out हो जाना चाहिए था. जाकिर अली ने कैच ड्रॉप किया. You feel like Pant should be there? पंत एक तो मेरे लिए गेम एक्साइटिंग करता है, दूसरा ही इज एन एक्स फैक्टर और फिर लेफ्टी भी है. There's a lot of things that he brings to the table, right? That's why. मैं दुबई में केएल राहुल को यार पता है न्यूयॉर्क में जहाँ पे विकेट बहुत गंदी थी वहाँ पे पंत ने आपको न्यूयॉर्क तो अजीब ही विकेट. I know मगर क्विक फायर 32 आपको जिता गया पंत का वहाँ. यार I don't think आपको उस फेज में वो बोले अब चाहिए. यार you've got floaters and Akshars and all of these guys. I don't think so man. केएल राहुल जो है ना, केएल राहुल का सिर्फ एक मसला है, फंस जाता है कभी कभार. नहीं ऋषभ पंत is a much better wicket keeper than. Oh of course he missed a stumping अभी. So ये डिफरेंस जरूर है. I love his hair. ठीक है, neat shampoo details केएल. But यार मेरे हिसाब से पंत की जगह बनती है उसके ऊपर. I know popular opinion केएल ही है. यहाँ पे we'll take it as Behram's team. Behram wants Pant and Arshdeep to play. Yes, basically. I want Arshdeep to play. I want Arshdeep to play. मगर तुम दोनों को लगता है कि अनचेंज जाएंगे? हाँ. Chances are that they will go unchanged. मुझे लग रहा है कि they will go unchanged. I feel like you guys might get surprised a bit. I think आ जाएगा अर्शदीप. क्योंकि कोई ना कोई they must have had a thought process behind playing 11 against Bangladesh, and I do feel like they were very much successful. बाबर ओपनर है ना, अर्शदीप खेलता है LBW कैंडिडेट है बाबर. Yes. अच्छा. क्यों याद दिला रहे हो यार? तुमने तो शायद वो मैच ग्राउंड में नहीं देखा हुआ. Unfortunately. बल्कि हिजाब एक दफा यार वायरल हो गई थी. हिजाब की सेलिब्रेशन थी जो पूरे ट्विटर पे थी हर जगह, और वो पैकेज में भी आ रही थी बाद में, जो वो मैच खत्म होता है ना फैंस को दिखाते हैं वहां पे. That was a match to cheer for यार. That was a match. वो सोच के कहाँ थे हम और कहाँ आ गए. So I mean क्या competitive match था यार. वो एक बड़ा अच्छा दौर था पाकिस्तान के लिए versus इंडिया. यार that was the time के it was one of the rare occasions when both teams brought their A game. और इतनी tight game शायद मैंने कभी. वैसे तब खुशदिल ने छक्का मारा था एक. खुशदिल और आसिफ अली. नवाज was amazing. What a knock. You know that knock
will probably stay with me for the rest of my life because I just wasn't clearly expecting it. वो जो वन ऑफ था ना नवाज का, वो डे इन डे आउट करता है अक्षर, ठीक है, exactly. ये मसला, ये डिफरेंस आ He could जाता have done that for us, but और अभी तो उसकी बेचारी की हैट्रिक भी मिस हुई है. wasn't meant to be. अच्छा, So, प्लेयर्स पे आ जाओ. Key players पे चलो, we'll give Hijab the floor once again. You need to name first 3 key players for Pakistan and present us with your rationale as well. Yeah, I think the first and the foremost would be Salman Ali Agha. Okay. I think कि इस वक्त जितना फॉर्म कह लें आप उसको, या आप उसको कह लें कि जितना ही इज प्लेइंग आउट ऑफ हिज स्किन राइट नाउ, ही इज डूइंग एवरीथिंग दैट ही पॉसिबली ह्यूमनली कैन, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग एंड इवन हेल्पिंग आउट एज अ वाइस कैप्टन. True. ठीक है, दैट्स अ ह्यूज रोल बाय द वे, Yes. क्योंकि आपका कैप्टन बहुत डिपेंडेंट होता है ऑन योर वाइस कैप्टन टू गिव हिम more ideas, more inspiration, motivation, whatever you want to call it. So I think in any case, in any scenario, Salman Ali Agha will definitely be one of the most key players. I do feel like this might be a little bit wide. I do feel like Haris Rauf will play a big role. अच्छा. मुझे I know people do not like the fact कि वो बहुत ज़्यादा runs leak करते हैं और सारा कुछ करते हैं, but मुझे लगता है कि ऐसी surface पे if he brings his A game, it would be a good match to watch. And you have to pick one more. यार अब मुश्किल हो गया हमारे पास. प्लेयर याद कर रही है. तैयब ताहिर नहीं. मोहम्मद रिजवान. अच्छा, so I think batting wise, if अगर रिजवान ये न्यूजीलैंड वाले मैच में वो वाहियात जो कैच पकड़ा ना ग्लेन फिलिप्स ने, वो ना होता ना अगर, not safe for work है वो कैच. नहीं भाई, वो that is something जो कि मैं देख के ना मैं 15 मिनट में सुन हो गई. मैंने कहा ये नहीं हो सकता, ये हो ही नहीं सकता. Jared has dubbed him Glenn Phillips as the greatest showman of cricket. और ऐसे कैच ना 800 पुशअप निकालने के बाद ही निकलते हैं. बट आई डू फील लाइक वो नहीं होता. रिजवान अगर रह जाता वहां पे थोड़ी देर भी, 50, 60, 70 रन, एनीथिंग, एनी कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम हिज एंड, वो जो आपका 60 रन्स का डेफिसिट है ना, वो रिजवान पूरा कर जाता. आई डू फील लाइक he is the backbone of your batting line right now. I agree over there, and my key players are similar. Now Mohammad Rizwan is my number 1 key player, क्योंकि एक तो कप्तान है, टीम मुश्किल में है, and he will have to lead from the front. और आपको एक होल में से कप्तान जब निकालता है ना, तो टीम पूरी इंस्पायर हो जाती है. So he will have to score some runs. Also he's a really good player of spin, right? And he's a good sweeper of the ball. ठीक है, और उसकी बड़ी डिफरेंट किस्म की स्वीप्स भी हैं. ठीक है, एक तो वो बिल्कुल आगे रीचर मारता है, पूरा आगे निकल के. ठीक है, so I feel like he's going to be absolutely imperative, not just as a batter, but he'll have to think on his feet as a skipper. ठीक है, tactics उसकी solid होनी चाहिए, which is why I feel like Rizwan will be key. India different चीजें ट्राई करती है, Rizwan one step ahead होना चाहिए उसे हमेशा. You'll have to innovate, you'll have to frustrate them with the field placing. You'll have to be chirpy. Unorthodox, थोड़ी बहुत स्लेजिंग भी हो जाए तो क्या ही बात है. नसीम तो कर रहा है आजकल वैसे. कोहली को नहीं करनी. हाँ, कोहली को नहीं करनी. वो ऑन हो जाता है उसे स्लेजिंग करके दिखाओ. कोहली तो चाहता है, कोहली चाहता है सो कोई चाबी लगाए और फिर वो चलता है. So Mohammad Rizwan, number 1 key player, the guy who has to score runs in this game for me is Mohammad Rizwan. ठीक है, number 2 पे, and you guys probably will disagree with this, is for me Abrar Ahmed. यार स्पिन का मसला है. Your front line spinner needs to turn up. If he does turn up, then he automatically becomes a key player and he could potentially win you that game. Yes. I don't have a lot of faith, but I don't want to. निकाल जाए यार अच्छे से. Where he squeezes them, he gets you a couple of good wickets, good big wickets. I think उसका काम हो जाएगा. बिल्कुल. Yeah, if I see Abrar even going for 60, 65 runs and he gets 3 wickets, I take that. 3 विकेटें चाहिए मुझे Abrar I से. take that. So he is a key player because पाकिस्तान की weakness is spin bowling. जैसे हमने कहा 1.5 स्पिनर है पाकिस्तान के पास. So the onus is on him, which is what makes him a key player for me. और तीसरा वाला पता है मेरा भी हारिस रऊफ है. Because again, middle overs wickets, but I'll tell you. नहीं, I'll tell you why I picked him. There's a slight difference. Middle overs wickets तो अब इस वक्त तो कोई भी बोल सकता है. But you know हारिस रऊफ का जो slower one है ना, बड़ा कुत्ता है. बड़ा मुश्किल होता है वो पिक करना. Mark Chapman was on our podcast and he said that the most difficult delivery that he has faced is the Haris Rauf slower one, क्योंकि same action के साथ आता है. और उसको ज़्यादातर कामयाबी उसी पे मिलती है. Same arm speed के साथ आता है. You cannot pick it very easily. So on this sort of surface in particular, either he needs to bowl rockets or bowl those slower ones which could really trouble India. ये miscues and top edges निकलेंगी आपकी, which is what makes Haris Rauf very imperative. एक दो ऐसे players हैं इंडिया के जिसको हारिस slower one से बहुत trouble कर सकते हैं. बहुत ज़्यादा. और पता है, मारो थोड़े बाउंसर भी मारो जाके. श्रेयस अय्यर को बाउंसर मारो. खैर उसने इंग्लैंड सीरीज में बड़ा अच्छा खेला. पुले शुले मारना शुरू कर दिए उसने, मगर yesterday he did look a bit clueless on that surface. श्रेयस को इतना अच्छा नहीं खेला. वो तो बिल्कुल पहले ही रन आउट हो जाना चाहिए था. वही था ना? I think so. वही था जो 0 पे रन आउट हो सकता था. फंबल कर दी थी फिर बड़ी गंदी फंबल थी वो. So yeah, those are my 3 key players. Saadi, what about you? यार मेरा है गालियां पड़ेंगी इस पे, शाहीन अफरीदी.
अच्छा गालियां feel- क्यों पड़ेंगी भाई यार क्योंकि लोग जो है ना बड़े तपे में शाहीन पे। यार मगर न्यू एक बॉल सेकंड ना यार, अगर को आप एक सेकंड, आप मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी मोर अकाउंटेबिलिटी मानते हो ना इस बात को? बिल्कुल। इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है ना, इसीलिए तो बाबर, रोहित, कोहली ज्यादा क्रिटिसाइज होते हैं। ऑब्वियसली, हाँ। क्योंकि उनका रोल बड़ा है। टू कोट अंकल बेन with great power मैंने जानबूझ के नहीं किया था, डिडंट वांट टू बी क्लीशे, बट ऑफ कोर्स comes great responsibility and don't be Peter Parker जो बाद में फिर रो रहा हो जब उसको ये बात पहले ना रियलाइज हुई हो। नहीं, आई टोटली अच्छा, बैक यू हाँ। ऑन द फैक्ट कि शाहीन अगर चल गया, क्योंकि पावर प्ले में जो देखा है ना, मुझे लगता है वहां पे इंडिया हमेशा एडवांटेज लेके बात जाता तो है। सही है। रोहित शर्मा इज द की, वो जो डिफरेंस है ना शुरू में 50-60 रन का जो कि पाकिस्तान 22 करता है और वो 70 करते हैं, तो वहां पे अगर रोहित शर्मा को अर्ली निकाल लेते हैं तो वो इम्पैक्ट थोड़ा सा कम मजा आया मुझे तुम्हारी बात का, पता है आई एम ऑलमोस्ट swayed to change mind बट मैंने कह दिया नहीं, दूसरा मेरा हारिस रऊफी है। इट मेक्स सेंस। आप चाहते हो कि आपके बैटर्स पावर प्ले में अच्छा स्कोर करें, बट आप ये भी चाहते हो कि आपके बॉलर्स वहां पे रन्स लीक ना करें। चक्कर ये कि रोहित शर्मा does have a weakness against left arm pace. Yes. And if you get him early, you kind of handicap India because Gill और कोहली रोहित की पेस पे नहीं खेल रोहित सकते। की पेस पे कोई भी नहीं बल्कि कोहली तो आजकल वो भी थोड़ा स्लो हुआ है और उसके खिलाफ अब्रार का भी एक मैचअप है। इवन दो अब्रार isn't a wrist spinner, वो I don't wrist think- spinner नहीं है, वो leg spinner है। बट आप यू विल स्टिल टेक योर उंगली से। चांसेस, यू विल स्टिल टेक योर चांसेस। उंगली से कराता है ना वो Mystery spin. मिस्ट्री स्पिन, रिवर्स बेंडिस, ठीक है अब्रार। दूसरा मेरा हारिस रऊफी है। आई थिंक विकेट्स थ्रू द मिडल एट द डेथ पड़ जाती हैं, अभी पड़ नहीं है हारिस उससे, भाई, लेकिन please. आई फील के उससे ज्यादा की इस मैच में पाकिस्तान के लिए बॉलर कोई नहीं होगा। हारिस भाई, उस अगर phase of the game आप देख रहे हो, I'm sure you know, but your change of pace might dictate play over here, literally, because इस पिच पे तो डेफिनेटली your fast ones are rockets, क्योंकि आप बहुत तेज हो और फिर जब उसमें फिर आता है ना 20-25 किलोमीटर पर आवर का फर्क। 115-120 वाली जो बॉल आती है ना, बिल्कुल। दैट तीसरा है मेरा बाबर आजम। ओह, Yes. लव दैट। बाबा अज़म। क्योंकि अगर देखो ना गिल ने जिस तरह की इनिंग्स खेली है लास्ट मैच में बांग्लादेश के अगेंस्ट, आई फील पाकिस्तान से अगर कोई वो कर सकता है तो वो सिर्फ बाबर कर ट्रू, इस सरफेस पे तो एक्चुअली ही नीड्स टू प्ले लॉन्ग। 70 का स्ट्राइक रेट नहीं, 80-85 का Yes. स्ट्राइक रेट पे खेले। That's what आई you थिंक want. हाँ, दैट्स व्हाट यू वांट If ऑन Babar- दिस ये If Babar कराची या bats लाहौर through- नहीं है। दैट्स व्हाट यू वांट इन दिस if पिच। Babar bats through 50 overs, मैंने वॉन्च बोल दिया। Launch! खैर वो तो फिर that is a wet dream at this point कि बाबर एंड तक खड़ा रहे। पिछले सारे मैं गुना 100 की भी बात नहीं कर रहा हूँ। Yeah. आई एम टॉकिंग अबाउट अ गुड 75। We're talking about a match winning 85 knock, balls. यार. Yeah. We're talking about a match winning और knock. हिजाब, a knock which sets up the game. I don't I'd take know. that as well. A match setting knock. ठीक है, और हाँ. an inning setting देखो ना, knock. 75 of 85 balls. A platformer, ये भी करते हैं यार। a proper platform Yeah. knock, ठीक है, जो आप सेटअप कर दो बाकी के लोगों हाँ. के लिए। I like your picks. मुझे शाहीन वाली तुम्हारी सबसे ज्यादा पसंद इसलिए आई है क्योंकि पावर प्ले पहले 10 ओवरों में इंडिया मारेगी, हाँ. खासतौर पे रोहित। रोहित and तो if- मारेगा। If you get Rohit early, you are in शाहीन the के game. लिए- शाहीन के लिए कोई नई चीज नहीं है टू गेट हाँ. रोहित शर्मा। शाहीन रियलाइजेस हिज वीकनेसेस, हाँ। ठीक है, और थोड़ा सा हाँ. रोहित भाई थोड़ा सा जरा डगमगाए थे बांग्लादेश वाले मैच में भी शुरू में। आई थिंक लेकिन फर्स्ट 4-5 हाँ. डिलीवरीज ही वाज अ फिज ने पकड़ा हुआ था उसे। एग्जैक्टली। और फिर फिज को उसने 7 चौके पेल दिए। यही तो यही तो difference- मसला है कि यही तो difference either है get him in the रोहित first 5 हाँ. balls और or he'll get That's it. actually very true. Yeah. रोहित शुरू में जो फंसता है ना वहीं पे उसको लेना है। एक दफा उसका पहला चौका लग गया, मुश्किल बस. हो जाएगी। और even रोहित has had the wood over Shaheen. Think 2023 हाँ. ODI World Oh, Cup. yes. लंबे लंबे छक्के फ्लिकों पे। वो इस वक्त जो टसल है ना वो इट्स गोइंग बैक एंड फोर्थ। Which I रोहित feel- plays this shot versus Shaheen where हल्का सा निकल करना टांग के ऊपर से Which निकालता I है। feel जो हमारी की बैटल्स हैं उसमें भी ये आता है। This is Oh, the key absolutely. battle. This is the key It battle. is the biggest key battle. Rohit versus Shaheen. Because if Pakistan somehow win that battle, Shaheen comes out on top. This will dictate very much rest the of the rest of the game. यार लिटरली ये 50 रन का फर्क है इंडिया के इवेंचुअल टोटल में। Easy. ऐसा शायद ही। इससे भी ज्यादा कहो, शायद मैं 50 कम किया गया हूं। सो आई लव दैट की प्लेयर एंड दैट की बैटल battle, इज yeah. ऑटोमेटिक। और कौन सी की बैटल्स यार ऐसे यार, अब्रार अगर you can have- अर्शदीप खेला तो हाँ. फिर अर्शदीप वर्सेस आवर टॉप ऑर्डर। एंड Yeah. पर्टिकुलरली बाबर। बाबर हो सकता है, कुलदीप वर्सेस बाबर। Yes, Kuldeep versus Babar. Arshdeep versus Babar could be one of those as well. All of India's left arm orthodox spinners versus Pakistan's batters. ये जडेजा और अक्षर दोनों। की बैटल पूछा That's था the उसने whole कहा match. ऑल हाई के That's the द की whole बैटल इज इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। नहीं आई फील कॉन्फिडेंट अगर साउथ खेले उनको और रिजवान और सलमान। बाकी आई एम नॉट फीलिंग पर्टिकुलरली। बाबर का भी ये वीक पॉइंट बहुत बड़ा है। weak लेफ्ट आर्म point. ऑर्थोडॉक्स स्पिन ना बहुत अच्छी नहीं बड़ा. खेलता वो। सो दैट विल बी इंपॉर्टेंट कि पाकिस्तान उन दोनों को कितना अच्छा खेलता है। बाकी इंडिया के लिए यार हारिस रऊफ इतना आसान नहीं होगा मुझे लगता है। इट वोंट बी दैट Slower स्ट्रेट ones. फॉरवर्ड। Slower ones. No, वैसे भी वैसे वो- they haven't done too well against him from what my memory serves. हमने तो अभी Other than that Melbourne match. हाँ, अब जाहिर है वो तो कोहली है ना। That's कोहली. He was having a terrific game otherwise. अभी तो हमने शामी की बात नहीं की। Yeah. ही इज बैक। Pfeiffer, Yeah. ठीक है। कितने मजे की बात है कि
the way that he's fulfilled the shoes in the first power play, बुमराह नहीं है, कोई मसला नहीं, यार शामी तो है ना। पावर प्ले में 2 विकेटें, फिर आगे आकर उसने जाके ये को आउट depth- किया। ये लेकिन एक depth मैं चाहिए बात मुझे। करूंगा, आगे था शोमशाका। शुमशाका, I don't like that. Yeah, I mean शुमशाका is the perennial underachiever. खूबसूरत बैटर है मगर कभी कुछ हुआ ही नहीं इस बॉय कभी से। कुछ नहीं हुआ। कभी भी कुछ नहीं किया। तो 2 विकेटें नई बॉल के साथ, फिर आके जाकर को आउट किया, फिर 2 एंड में फाइफर लिया है, क्विकेस्ट टू 200 विकेट्स, और सेकंड क्विकेस्ट टू 200 ODI विकेट्स, और 23.5 की एवरेज है। And an Quickest- all-phase bowler. ऑल फेस बॉलर। Quickest in terms of deliveries. या स्ट्राइक रेट उसकी 25.4 है, एंड ही हैज द बेस्ट ODI वर्ल्ड कप स्ट्राइक रेट ऑफ ऑल टाइम। देखो, just because we स्टार्ट से haven't भी बेहतर है। mentioned शमी और नसीम और other bowlers doesn't mean कि हमें उनसे expectations नहीं है। हाँ हाँ। नहीं, शामी को हर फेज में खेलना मुश्किल होगा क्योंकि उसकी सीम प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी है। He'll get the ball to move either way off the seam. स्विंग नहीं करेगा, वो सरफेस से मूव Surface. करेगा। इसलिए तो वो all-phase bowler है। या उसका जो पोजीशन होती है ना, सीम, यार ऊपर से Beautiful. ही Hard. समवन हु टारगेट्स द स्टंप्स हाँ. नॉन स्टॉप। Yeah. ठीक है, तो आपको वो ज्यादा रूम नहीं देगा। और शामी यार फॉर 34-year-old is still pretty quick। Oh, yes. अब तो नए बाल भी लगा कर आ गया। He came back from an injury and like commendable यार how he came या back. यार वैसे पता है पता इंडिया भी नहीं चल रहा कि वो इतनी सीरियस इंजरी से वापस आया है। इंडिया India मैनेजेस जो- देयर इंजरी सो वेल। बुमराह, पंत, नाउ शामी, मतलब ये प्लेयर्स आया नहीं These- करते। I'm opposite and- side of the और by the spectrum way, there. these were career-ending injuries. These Absolutely. were not like a small injury. ऋषभ पंत पंत का हम की तो सबको वो- पता है ऋषभ कि पंत was मौत के मुंह से निकल के आए बिल्कुल, वो। literally मौत के मुंह से निकला। But now looking at him and the way that he's progressed in the last year and yeah. a half, kudos to the Indian management. वर्ल्ड for- कप विनर। and Pant as well. हाँ, इतना for mentally strong bringing, होना होता है। for bringing their players back from the brink of बिल्कुल। ruins. यार अभी तो हम कह रहे हैं ना शामी 1.5 साल बाद आया इंजरी से। डू यू गाइस रिमेंबर हाउ लॉन्ग बुमराह वाज आउट फॉर? इयर्स, बहुत 2 साल बाहर था यार। 2 से सवा 2, I think हाँ। almost 2 Almost 2 साल बाहर था। सो यू नो कूडोस टू इंडिया। कुछ यार पीसीबी वालों आप भी सीख लो वहां जाकर। अभी तो हमारा हसन अली कह रहा है कि नॉट ऑल इंजरीज आर इक्वल, जो कि मैं तो वैसे कहता हूँ कि साइम को जितनी बेस्ट ट्रीटमेंट देनी नहीं, है दो। वो तो ठीक है वो, लेकिन हसन अली की ग्रीवेंसेस भी ठीक है। हाँ। कि इनके लिए नहीं किया गया वो। बिल्कुल। सो आई सपोज ही हैज अ सॉलिड पॉइंट ओवर देयर। क्योंकि जब उनको हुई थी तो ही वाज एन एसेट एज वेल, दिस इज अ वेरी ट्रू Yes, थिंग। yes, yes. वो चैंपियंस मतलब हाउ मेनी टूर्नामेंट्स डू यू रिमेंबर जिसमें पाकिस्तान के किसी बॉलर ने आउटशाइन किया हो almost anyone in that tournament? Yeah. वो था CT17 for Hassan Ali, वो बिल्कुल। तो पीक उसकी। Yes. And you had great expectations. And you know what he was doing, Hijab? He was taking wickets through the middle. Yes. हाँ, यही वही तो बात है की सारी। थी। Middle order, sorry, middle overs mayhem. या वही तो सारा मसला होता है। वो तो चलो फाइनल हमें याद है बिकॉज ऑफ आमिर स्पेल एंड एवरीथिंग। व्हाट वी यूजुअली फॉरगेट इज कि जो पिछली गेम्स हम कंसेक्यूटिवली जीतते आ रहे हैं वो That किसकी was वजह से Hassan Ali. जीतते आ रहे हैं। और आमिर only turned up in the final. Exactly. He's having a नहीं, shit वो- tournament otherwise. मैं- With the bat तुम बोलोगे श्रीलंका के खिलाफ। श्रीलंका Yeah, की गेम्स हाँ। बड़ी उसने इंपॉर्टेंट विकेट्स ली थी मिडिल में। दो सही बहुत कह crucial रहे tie हो। बट break through थी। मॉडर्न डे ओडीआई क्रिकेट में इफ यू नॉट टेकिंग विकेट्स टू द मिडिल, फिर वो हाल होता है जो अभी आपका लेथम लोगों ने किया। हाँ। लेथम और यंग और फिर बाद में ग्लेन फिलिप्स ने। यू विल हैव अ टीम एट 73 for 3 in 16.2 overs and you will concede 320 on a surface जिस पे आपको 300 भी नहीं पड़ना चाहिए था। 280 tops। यार ये होता आ रहा है। और यहाँ पे भी ना, you know how I feel Pakistan can win this game? You guys are free to disagree, but I feel Pakistan's best bet is to bat first and post 280. हाँ 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 हाँ। यही best मैं भी यही तरीका है। सोच रहा था। I would prefer Pakistan batting first. I do feel like कि हो सकता है अगर हमारे 1-2 प्लेयर जरा अच्छा वो डिफिकल्ट फेज मिडिल ओवर्स का निकाल गए ना, I think 260 275 is a reality for you. बांग्लादेश भी कर सकता था अगर वो थोड़ा सेंट पे स्लो ना होते। यार वो ऊपर- 30 नहीं, वो 35 for 5 हाँ, होते थे। वो यही कह रही हूँ ना, अगर ऊपर से 5 विकेटें एक साथ Yeah. ना गिरती, I feel like surface allows you to do that. और इतने कैच वगैरह ड्रॉप ना होते। तो I feel like 275 is a reality. It's a defendable total. For me the golden number is is 280. 280. Yeah, 280 is my golden number. Yeah, मुझे लगता है कि उससे नीचे I इंडिया कुछ ना कुछ कर। यार खुदा ना खास्ता रोहित आकर 70-80 ठोक दे पावर प्ले में। देखो वो तो गेम मुक गई ना। हाँ। गेम तो खत्म देखो हो गई फिर ना। तो गेम खत्म है। हाँ। पावर Yeah. देखो पावर प्ले में रोहित चल गया तो आप वैसे ही खत्म। या जिस तरह वो मार रहे हैं ना आजकल, और अब तो फॉर्म में वापस आ गया। Yeah. बीच में तो चलो उसकी भी फॉर्म बहुत ही गिर गई थी। आप सिर्फ आई थिंक थोड़ा सा फॉर्मूला अगर उठा लो, ऑल्दो आई अंडरस्टैंड, आई डू रियलाइज कंडीशंस आर डिफरेंट, लेकिन सिर्फ फॉर्मूला उठा के देख लो 2023 ओडीआई वर्ल्ड कप के फाइनल का। रोहित शर्मा स्टार्टेड ऑफ वेल लेकिन पकड़ लिया था ऑस्ट्रेलिया ने। हाँ। ठीक है, आफ्टर दैट कोई भी प्लेयर अदर देन केएल राहुल हु प्लेड वेरी स्लो, Indians अभी तक तकते हैं वो अभी उसके तक ऊपर। उसके ऊपर काफी गुस्सा है इंडियंस And को। sometimes ना, sorry मैं बात काट रहा हूँ, but if you remember the Rohit dismissal, it took a terrific Travis head catch. Yes. Oh yes. Remember? यही तो मैं कह रही हूँ। पाकिस्तान सर, एक स्टनर पकड़ लो। हाँ,
उनको ऐसा शॉक लगेगा अगली टीम को। अब देखो हिजाब, आई एम नॉट ट्राइंग टू थ्रो शेड एट सलमान अली आगा, ही डिड अ गुड जॉब गेटिंग अ हैंड टू दैट, मगर वही वाला कैच ग्लेन फिलिप्स ने पकड़ लिया यार आपका, वो सलमान पकड़ लेता, वही हम कह रहे हैं ना, दैट्स दैट ओवर, दैट हारिस रऊफ ओवर। It's a difficult thing to do. Yes. It's No, a it is. near to Yes. impossible catch to do. But हुआ point है। is, हाँ। point is that Pakistan need to capitalize or seize all the half chances that come their way. This is India. They are मतलब यार, tournament favorites. चलो थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया पे प्ले करूंगी, मतलब अगर आप वो कैच निकाल दो शादाब का पॉइंट पे फाइनल से, आमिर वाला, आपकी गेम का रुख बदल जाता है। हाँ, It's the भाई। catches, it's the off chances Yeah. that matter the and most. that came after an Azhar Ali drop. Oh, yes. वो इतना inspiring catch था. Yeah, yeah. So yeah, you're थोड़ी gonna बहुत need लक भी चाहिए होगी हमें। थोड़े से यार moments of magic चाहिए होंगे. Oh, yes. India is a very tough task. हम कह रहे हैं ना how Pakistan can beat India. ये हम बना रहे हैं, you know, 280 करो और फिर defend कर लो. India bring their A game, they beat Pakistan. या तो फिर आप इंडिया को I don't know 240 पे रोक लो तो शायद पाकिस्तान से चेस हो जाए. But I would still I wouldn't. मैं डरा हुआ ही हूँ. हाँ, इस दुबई पिच पे हमने या बहुत मुश्किल होना, ऊपर से इंडिया की क्वालिटी स्पिन अटैक है. स्पेशली सेकंड इनिंग्स में अगर कल भी देखो ना तो बॉल शुरू के 5-6 ओवर थोड़ी सी वो सीम कर रहा था सामी भाई, सामी कह रहा हूँ, शामी. हर्षित भी थी, उसकी भी हल्की सी स्विंग हो रही थी. अर्शदीप अगर खिला लेते हैं तो और मसला हो अर्शदीप जाएगा. को This will trouble you a lot. I do Because he doesn't need the surface, right? वो तो swing through the air कर रहा है. अंडर लाइट्स हमेशा पहले 5-6 ओवर मुश्किल होता है, और उसमें अगर आपने विकेट गिर गई ना आपकी तो मुश्किल है फिर You need रिकवर to be करना. ड्यू भी नहीं है। स्पेशल ड्यू भी नहीं है, और स्पेशली उनके स्पिनर्स जो हैं वो फंसा देंगे फिर. यार पहले I don't 3 think ओवर chase कर सकते हो आप. मेरे ख्याल से पहले 3 ओवर आपको देखकर खेलना है थोड़ा, और फिर आगे के 7 ओवर बहुत मारना है आपको पावर प्ले में. You मतलब actually वो have to. यार वो यही है कि अगर टॉस आपके हाथ में नहीं है ना, एंड यू डू एंड अप चेजिंग, वही वाली बात है, शुरू के 4-5 विकेट गिरा दो फिर बांग्लादेश वाले हाँ, मैच की तरह. हाँ, फिर That's यही your है. winning formula. Yeah, either शुरू की टॉप ऑर्डर हटा दो, शुरू की 4 गिरा दो, if you are bowling लेकिन उसके बाद first. फिर पांड्या आपको तंग करेगा. हाँ, नहीं फिर भी they might not get as big a score No, though. they might not, और हाँ. पांड्या के लिए इतना मारना आसान नहीं होना इस विकेट पे, इस ये भी wicket याद पे रखो. मुश्किल है. But वो अलग knowing- बात है कि knowing हमारे that he- हमारे स्पिनर्स खुशदिल को तो मार ही देगा. But then knowing, but even for Pandya, knowing that there are not a lot of options coming after him, he might restrict himself a यार little. है ना, जडेजा है मगर उसके बाद. जडेजा उसके बाद आता है. मैंने कहा लॉट ऑफ ऑप्शंस नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि बैटिंग ऑर्डर ही खत्म हो गया. पांड्या खुद साथ पे खेल. हाँ, उनका बहुत डीप बहुत बैटिंग deep ऑर्डर है batting. यार. दे हैव दैट लग्जरी वेयर दे कैन बैट रियली फ्रीली बिकॉज ऑफ दैट वेरी डीप हाँ. बैटिंग ऑर्डर. और यही वो शादाब होता तो आपका थोड़ा मसला हल हो सकता था. ये तो अच्छा, मैंने- प्रेडिक्शंस. प्रेडिक्शंस पे आ गए हम. Predictions पे आ गए. अच्छा, so just to get this clear, if we are all in unison, ठीक है, हाँ. 2 तरीके हैं. दो. पहली बॉलिंग आती है तो you run through the top order and you get like 3 to 4 wickets. पहली बॉलिंग आती है, विन द पावर प्ले प्लीज. हाँ. 230 to 240 तक रिस्ट्रिक्ट करो. 2 to 4 विकेट्स तो आपको पावर प्ले में ही चाहिए हाँ. पहले 10 ओवरों में. Yeah. सही है. और पहली अगर बैटिंग आती है, हिजाब इज सेट 275. I feel like 275 is a very good fighting. आई एम सेइंग 280. व्हाट अबाउट यू साद? हाँ, 275. इतने चाहिए होंगे. बाकी डिपेंडेबल है 275. इन 2 तरीकों के अलावा बाकी हर तरीके से इंडिया जीतती है. हाँ हाँ. इसी तरह की रियलिटी है. देखो Pretty much. 275 भी डिफेंडेबल है, हाँ. लेकिन वो भी चेस कर सकते हैं. And I बिल्कुल. sincerely hope it's a good game. मैं Game तंग ही आ अच्छी चुकी हूँ one sided games. तंग आ चुकी है वो. प्रेडिक्शंस पे आ जाओ. हाईएस्ट स्कोरर. Well, let's हिजाब गेस्ट है नहीं, आज. अभी तुम स्टार्ट करो, हर चीज मैं ही स्टार्ट करूँ. Highest scorer of the day, I am going to go a bit left field, and I will say Salman Ali Agha. अच्छा. Yeah, बहुत लेफ्ट फील्ड चला गया ऊपर. भाई हाईएस्ट स्कोरर विल बी माय कैप्टन. रिजू. हाँ. दिल के साथ जाऊं, दिमाग के साथ जाऊं. दिल के साथ जाओ, दिमाग के साथ- दिमाग किसको चाहिए? दिमाग वाला शो नहीं है वैसे, है तो सारा दिमाग वाला शो, मगर इस वक्त प्रेडिक्शंस जो है दे कम विद अ केजी ऑफ सॉल्ट. तुम हमें पता है तुम्हारा दिमाग क्या कह रहा है, हमें बताओ दिल क्या कह रहा है. दिल मेरा बाबर कह रहा अच्छा, लो भाई, दिल उसका बाबर धड़क रहा है. है. दिमाग मेरा कह रहा है केएल राहुल. आई डोंट नो. अच्छा, आई डोंट नो. इंटरेस्टिंग. तो तुम भी थोड़ा लेफ्ट फील्ड गए उसके साथ. Yeah, I'm going with Salman Ali Agha because I feel like there might be a situation where someone will have to bail Pakistan out, and he is that guy these days. हाँ, and I- मुझे लगता है अब तो आ जानी चाहिए बाबर को थोड़ा सा. मुझे लगता अब है मैं कि कुछ रिजवान इज somebody who has played against this squad particularly very well in the past, और उसने निकाली भी है गेम्स आपकी. I do वैसे back him. I this- do back him, and I feel like he's mentally the strongest. He is right mentally now. the strongest. उसमें Yeah. apart from Fakhr, I feel हाँ. वो दोनों mentally strong थे. Yeah, और वो सिर्फ खुद नहीं खेलता, वो अगले को भी खिलाता है. this Which is a very might good thing. come as a mood dampener, but दिमाग मेरा रोहित शर्मा कह रहा है. वो Highest तो run एक scorer. obvious सी चीज है हाँ, भाई. वही तो मैं कह रहा हूँ. आकर उसने ठोक दिया शुरू में, मैच वही खत्म. Shinu, do something. या शाहीन शाह और अच्छा, चलो, अफरीदी. शाहीन की बात की तो हाईएस्ट विकेट टेकर शामी. कुलदीप. यार, अच्छा. हारिस रऊफ. All right. Okay. All three are different. Also, by the way, आप लोगों ने भी अपनी सारी ये predictions predictions देनी है. देनी. Highest run scorer, highest wicket taker, most sixes. 6.
रोहित शर्मा। हाँ रोहित यार, मगर हार्दिक पांड्या। आई लाइक आई हिज डोंट बेटर। थिंक उसकी बैटिंग भी आएगी। अबे इतना यार, भी भरोसा नहीं है। इतना तुम मतलब अच्छा वैसे पता है all we I think all भरोसा तो नहीं है मुझे, जहां जीरो। what all three of us probably want to see over here is a contest. हाँ Yeah, obviously, I mean, jokes aside, Yeah, और सारी jokes predictions aside, like I said, don't want to see another one-sided game either way. अच्छा, और आपका पता नहीं क्राउड भी कैसा आता है, कितने पाकिस्तानी होते हैं, कितने पाकिस्तानी इंडियंस कम ही होते हैं? You would know better. I've seen a couple of games वहाँ पे it's 30-70. अच्छा। Usually 70% is Indians. उनकी आबादी ज्यादा है. We can't do anything about that. हमारे 30% usually पाकिस्तानी होते हैं. But let me say this. जब पाकिस्तान अच्छा कर रही होती है, जब पाकिस्तान आगे होती है गेम में, those 30% are louder than that. All right. Oy. Well, she's openly challenged all of you Indian supporters जो जा रहे ये थे. कर रहा है भाई, मैं नहीं कर रही. दिल का पाकिस्तानी जो है ना, इसका जागा है। Yeah, you have to support ना. हम कैसे support छोड़ So दें? basically you're saying हिजाब दिल पाकिस्तान greater than चक दे इंडिया. चक दे इंडिया. अच्छा, वैसे अगर एक और गानों बता की दी. बात करूँ ना, अगर गानों की- unbiased होगा। हाँ, पाकिस्तान के कल जो क्रिकेट वाले गाने हैं I ना. was actually telling this to my mother yesterday when watching the India Bangladesh game कि जो vibe है ना चक दे इंडिया वाले गाने की, unmatched. हैं? Unmatched. यार मेरे लिए तो जज्बा जुनून is the best way- song. I feel नहीं, दिल I'm दिल talking पाकिस्तान about जो करते हैं ना नहीं, मुझे। I'm talking about non-Pakistani. मतलब अच्छा। मैंने I've seen a couple of games and with other people as well. वो उनके भी गाने बजाएंगे, वो श्रीलंकन भी बजाएंगे, बांग्लादेशी भी बजाएंगे, इंडियन भी बहुत सारे बजाते हैं. But the चक दे। vibe of that चक दे इंडिया and the way that गाना तो everybody अच्छा। sings along to that. कभी-कभी मैंने भी 1-2 दफा गा दिया था वैसे. ठीक है। और फिर गाना तो मुझे अच्छा बाद है। में रियलाइज हुआ नहीं मेरी अच्छा। टीम खेल रही है. यार पता नहीं, फॉर मी द बेस्ट गाना तो- सॉन्ग एवर जो क्रिकेट रिलेटेड है वो जज्बा जुनून है. वो जो पाकिस्तान वाला एंड में आता है ना, कभी ना मान वाला, ओए होए होए, बड़ी फील्स हैं उसमें. और वो एओ भी बड़ा पसंद है बट मुझे. जो भी है इंडिया पाकिस्तान गेम का जो माहौल है गाइस, अनमैच्ड. आई मीन आई हैव सीन अ फ्यू व्हेन आई वाज अ किड. हाँ। जब मैं छोटा था, मैं छोटा रावलपिंडी था, स्टेडियम मैंने छोटा भी मैंने पिंडी भी में देखा है, मुझे याद नहीं है बिल्कुल. अच्छा, मुझे सारा याद है। My बहुत father took कोटा me to था। a few games, but ये कि अभी जवानी में जो मुझे याद है वो रिसेंटली जो मैंने देखा Yeah. था, जो दुबई स्टेडियम में देखे थे मैचेस, देवर जो वाइब है वो बहुत मजे की होती है. हाँ, लेकिन अगर आपकी टीम हार गई है एंड यू आर गोइंग आउटसाइड द स्टेडियम, बहुत नारे लगेंगे. बिल्कुल. बुरा नहीं मनाना. हाँ, मगर यार पता है there are a lot of Fun in fun games. stories over there as well. Indians and Pakistans, you know. क्योंकि if you guys remember वो जो एशिया कप था ना 2022 का, उसमें पहला मैच जब हमने खेला था इंडिया से, हम हार हार गए गए थे. थे. हाँ. उसमें बड़ी बातें सुनाई थी इंडियंस ने. ठीक है, हम बस मुस्कुरा के निकल गए वहां से. उसके बाद तुमने भी सुनाई होनी है. हमने कहा गुड गेम गाइस, गुड गेम. अंदर से दिल रो रहा था, खून के आंसू. बट वी वर लाइक एक और चांस है यार, एक और चांस है. एंड वी टुक दैट चांस and we took the revenge as well. Yeah. No, I mean, look, the atmosphere is unparalleled. मुझे vivid memories हैं. 2 मैचेस देखे हुए मैंने, जब इंडिया आई है 2004 में और फिर 6 में. दोनों रावलपिंडी में थे. एक में तो वो था, सचिन became the first Indian to score a century on Pakistan soil and Pakistan won that game. ठीक है, कुछ 13-14 रन से जीते थे. रजाक ने शायद कैच पकड़ा था सचिन का, और शेबी had a good game. और आफरीदी और यासिर हमीद ने ऊपर से बहुत मारा था, कूटा था. और उसके बाद जो हारे थी पाकिस्तान रावलपिंडी में, वो भी मैंने देखा हुआ है यार. ठीक है, एक तरफ नारेबाजी भी हो रही होगी और वो हो रहा होगा, काफी कॉन्टेस्ट हाइटेंड होगा, बट there were a lot of good stories as well. हाँ. I was sitting with Indians, connecting with them. हाँ. यार sport जो है transcends boundaries and borders, ये करीब लाती है. It's हाँ. a bridge builder. हाँ, हाँ. तो वो I hope we get to see a lot of that. हाँ. We often see a couple जिसमें एक पाकिस्तान का होता है, एक इंडिया का होता है. वो हमेशा देखने को मिलता है. तो देखो ना, यही तो ब्यूटी है ये तो स्पोर्ट की. और खूबसूरती है. इस तरह का छोटा मोटा बैंटर जो है ना, करना भी आना चाहिए और सहना भी आना चाहिए. बिल्कुल. ज्यादा ओवरबोर्ड ना हाँ, हो ज्यादा जाए. ये आटे पेट्रोल पे ना पहुंच जाए हाँ. करो. और And we यहाँ live से in भी an कोई- era जहाँ पे आई थिंक हर साल या 2 साल बाद आपके पास इंडिया पाकिस्तान गेम आती है, क्योंकि हर साल 2 साल बाद आपके पास एक आईसीसी टूर्नामेंट आता है. वो होता भी इसीलिए है. अनफॉर्चुनेटली हमारा इंटरनेट इस तरह का है ना कि जो सारे जो कीबोर्ड वॉरियर्स है ना, फजूल किस्म के ट्रोल्स, वो एक तरफ से आटा यार पेट्रोल, अगर कोई मजे का ट्रोल करे ना तो आप वो खुद भी हाँ. मगर ये आटा पेट्रोल नहीं, आटा टेररिस्ट चावल नहीं. टेररिस्ट नहीं, आज जो बाहर बहुत हाँ, सुनने को हाँ. मिलता है. टेररिस्ट आतंकवादी. भिखारी, पाकिस्तानी, भिकारिस्तानी, और इधर से हम टॉयलेट कर रहे होते हैं. ये चीजें छोड़ दो यार. Ridiculous. या Ridiculous. देखो उनका Grow जो- up. हम हमेशा बात करते हैं मौका जो शुरू में ऐड शुरू में कितना फिट था वो. मजा आता था यार. Yeah, हाँ. even we enjoyed it. या वी वर सिंगिंग इट. हाँ, और फिर even बाद we में यू enjoyed टुक इट अ बिट ओवरबोर्ड, पर फिर वो उल्टी खाई हाँ, चैंपियंस फिर- ट्रॉफी फिर के फाइनल चैंपियंस में. ट्रॉफी के फाइनल में क्या हुआ वो सबको पता है. तो गुरूर का सर जो है वो अक्सर नीचा ही होता है. प्रेडिक्शंस कर रहे थे भाई. हम तो हमेशा winner. अंडरडॉग्स होते हैं. हाँ, हमने हाँ. कहा गुरूर की. एक तरह से पाकिस्तान को सूट ही करता है अंडरडॉग रहना भाई. कौन जब ये फेवरेट्स जाते हैं तो इनसे चीजें नहीं होती. अच्छा, विनर ऑफ द मैच यार इंडिया ही कहूंगा मैं. दिल पाकिस्तान. जा जा. देखो जो भी है, मेरी टीम रैंकिंग में 110 भी होगी ना, स्टिल से दिल पाकिस्तान. Nice one. हाँ, लेकिन दिमागी तौर पे ऑन पेपर
reality को सामने रखते हुए India has a much settled, much more stronger team. So they should back themselves to win this contest, and that would particularly basically end Pakistan's journey in the अच्छा championship. सॉरी एक लास्ट मिनट सवाल आ गया मेरे दिमाग में तुम दोनों से हारिस राउफ और मोहम्मद रिजवान इन सबके बयान आ रहे हैं कि इट्स जस्ट अनदर गेम इट्स अ नॉर्मल गेम ऑफ क्रिकेट डू यू थिंक दे आर बीइंग सीरियस नहीं I don't think they're being serious. Yeah, I think ये बता रहे हैं सब The thing is that they're told this by the yeah. way. मगर ये पहली दफा बोल रहे हैं नहीं नहीं, they कब say- last बोले यार इन लोगों पहले ने? भी ऐसे ही बोलते हैं players ये वाला क्रॉप तो बोलता ही again- This is a again, Dhoni line. even on the नहीं Indian ये वाला side क्रॉप तो मैंने नहीं कभी even on the Indian side Rohit says the same thing the other players say the same thing it's just another game for us and it's true it is another game for us until they enter that ground Yeah, dude, it is a very I think emotional उससे game. पहले वो इंडिया को एज एन ऑपोजिशन ही देख रहे होते हैं they're planning they're doing stuff जो वो नॉर्मली करते हैं बट जब आप एक दफा ग्राउंड में घुस जाते Yeah. हैं और 1.5 लाख बंदा बैठा होता है बिल्कुल। that's when the reality changes और इसी पे ना एक फाइनल बात यही करूंगा कि इट्स माइट साउंड क्लीशे बट हुएवर हैंडल्स देयर नर्व्स बेटर which एज ऑलवेज India I never usually know. does I better. never do. I would have been a horrible athlete if I would have been one. Because मेरे तो एंजाइटी से दिमाग हो जाता है आउट या नहीं इनका नहीं पता मुझे। इंडिया जो है I'm pretty calm under pressure. इंडिया जो है नर्व्स बेहतर हैंडल करता है पाकिस्तान से बट देन अगेन इफ पाकिस्तान विन अ फ्यू की फेजेस as we've mentioned in this podcast you never know it's not going to be a walkover इंडिया hopefully करता है Hopefully इंडिया होगा। करता है बट देन अगेन इफ यू अगर आप उनको ऊपर से पकड़ लेते हो जकड़ लेते हो यार हु कैन मतलब 2021 याद है ना क्या Yeah. हुआ था पकड़ लिया था ना ऊपर से दे कुड नेवर रिकवर बिल्कुल They बात तो could ठीक है never recover even with a good team, a better team, a much more settled team. हमारी टीम बहुत यंग थी, या ठीक है? वो बैगेज फ्री टीम भी थी थोड़ी सी Baggage जाओ free team, काफी drama ज्यादा free, baggage. baggage free team. I miss those days very Yeah. much so. तब हम लोग केक कटने की वीडियोस इतने शौक से देखते थे हर रोज केक कटते थे Good, अब तो केक कटे हुए इतना टाइम हो गया भाई Good days. I think that's about it. आप Yeah. लोगों को वीडियो पसंद आई Wait, तो लाइक तुम्हारी प्रेडिक्शन यही है दिल से पाकिस्तान और दिमाग से इंडिया हमेशा यही है। सबका यही सीन चल दिल रहा है दिल भाई से यहाँ पे। हमेशा पाकिस्तान है, आप लेकिन भी अपनी नहीं, सारी प्रेडिक्शंस हमें कमेंट सेक्शन में बताओ एंड आल्सो लेट अस नो हाउ मच यू एंजॉयड हिजाब इन द शो हाँ। बिकॉज़ यू नो पोटेंशियली शी कुड फीचर लॉट मोर Yes. And if you didn't enjoy it, तो साफ साफ बता देना फिर मैं हाँ। कॉल नहीं उठाऊंगा। नहीं हम फिर भी ले आएंगे इसे कह देना मैं नहीं आ रही हम घसीट के Call ले उठा आएंगे लेना। या लेकिन यार देखो अगर तुम लोगों ने आटा के ट्रोल किया ना that's not nice. Yeah. हाँ, but if you guys have if the viewers have genuine feedback, that's always welcome. या फॉर ऑल ऑफ अस लाइक बटन पे क्लिक करते हैं, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम हिजाब, मुझे हर जगह फॉलो करते हैं। हमारी बूथियां पसंद आई हो तो स्पॉटिफाई और Amazon म्यूजिक पे भी सुन सकते हैं। जार्नी ऑफ द पॉडकास्ट बन जाए पेट्रियन के थ्रू, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन, और स्पॉटिफाई कहने लग गया इजी पैसा के थ्रू 0319360255 इज द नंबर। पाकिस्तान इंडिया मैच एंजॉय करो, ज्यादा दिल पे ना लेना और जस्ट एंजॉय जस्ट एंजॉय दिस स्पेक्टिकल प्लीज ज्यादा मत ओवर हो जाना We'll see you guys next time. Until then, Allah Hafiz.